इंट्रोइटस से अगर ऊपर है तो फिर वो नहीं आएगा, लेकिन इट हैज टू बी विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंट्रोइटस। समझ आ गई ना? अगर इंट्रोइटस है उससे 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होगा तो वो फर्स्ट डिग्री में आएगा, बट इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ द इंट्रोइटस तो इट इज सेकेंड डिग्री, और थर्ड डिग्री का आपको पता ही है। ठीक है मैम, ओके। ठीक है, चलो आई थिंक 11 o'clock हो गए, वी कैन स्टार्ट। जी, आज मेरा ख्याल है शाहरुख का ही केस है ना, अनीमिया का। जी मैम। मैम चलो इससे को ना जॉन्डिस भी था थोड़ा सा, तो मैंने साथ में डाल दिया। चलो ठीक है, वो भी साथ अनीमिया डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, चले बताएं। मैम मिसेस साइमा, वाइफ ऑफ मिस्टर। मैम ये मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है, ये क्यों हो रहा है ऐसे? पता नहीं। आप उस अपना ना दिन। स्पीकर का वॉल्यूम कम कर दें। अच्छा, स्पीकर। हेलो। हाँ जी, हमें तो ये क्लियर आ रही है आपकी ये आवाज। नहीं, मुझे अपनी आवाज खुद सुनाई दे रही थी, इसलिए डिस्टरबेंस हो रही थी। मैम अब ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक Mrs. है। Saima, wife of Mr. Arshad, she is 30 years of age and is not formally educated. She is housewife. She is married for last 8 years. This is first and consensuous marriage of both partners, and she is not well aware of her blood group. She is gravida 4 para 3 with no miscarriage and previous 3 lower segment cesarean section, and her last childbirth is 3 years back. Her last menstrual period was on 20th of August 2020, making her expected date of delivery on 27th of May 2021, with a duration of pregnancy is 25 weeks and 6 days. She is admitted through outpatient department on 18th of February 2020 with the presenting complaint of easy fatigability and lethargy from last 1 month and shortness of breath from 1 week, and she is admitted for the evaluation and management of decreased hemoglobin. She conceived spontaneously in a regular menstrual cycle of 3 days in every 27 days with average flow, and she assumed herself to be pregnant when she missed her periods, and later on confirmed her pregnancy by urine pregnancy test, which she carried out at home when she was 10 days overdue. Later on, she visited to the nearby clinic for her confirmation of the pregnancy, where her ultrasound was carried out in the first month of gestation, and she was told regarding single alive intrauterine pregnancy with normal fetal cardiac activity. And there is no history of excessive nausea and vomiting, no history of flu fever rash-like symptoms, no history of recurrent urinary tract infections, abnormal vaginal discharge, and the vaginal spotting. However, she was not prescribed for the folic acid, and she didn't book herself anywhere in the tertiary care or in some private hospital. And her blood pressure was not checked in the first trimester. No any blood or the urine investigations were carried out in the first trimester. She felt the fetal movement for the first time in the 5th month of the pregnancy, which she is not correlating with the calendar month. And up till now, her fetal movements are reassuring, and her abdominal size is growing according to her gestation age. She was giving the history of easy fatigability and lethargy from last 1 month, which increased gradually, so that now she is unable to carry out her daily household work, and she get tired on climbing the 2 flights of the stairs. However, it was not associated with shortness of breath previously, but now from last 1 week, she is giving history of shortness of breath, which is gradual in onset and increase in intensity in doing the household work and relieved by taking rest. And there is no history of chest pain, palpitation, decreased urine output, but there is history of pedal edema and progressiveness of this shortness of breath, but there is no history of sudden onset of shortness of breath, orthopnea, or disturbance in sleep due to this problem. And my patient diet is deficient in meat, poultry, and eggs, and she used to take the meat only once or twice in a month. And her diet is comprises of the cereals and the vegetables. And however, there is no history of excessive nausea and vomiting, abdominal pain, chronic diarrhea, constipation, but there is history of loss of appetite and indigestion. And there is no history of bleeding from mouth, nose, and gums, no history of bleeding in the urine, no history of parectal bleeding, and no personal or the family history of any bleeding disorder or the repeated blood transfusions in the family for any problem. No history of high grade fever with the rigors and chills, low grade fever with cough and the bleeding in the sputum,
No history of easy bruisability, pterygium formation, but there is history of yellow discoloration of eyes noticed by my patient 1 month back. It was not associated with any blood transfusion recently. No history of gallstones present in my patient, and no history of recurrent use of the injections and reuse of the injections, and no history of hepatitis in the family. But the hygienic condition of my patient is not in a very good condition, and she didn't drink the boiled water, and there is no history of proper washing of food before their intake. For this problem, my patient has visited to the tertiary care uh, 4 days back. Here she was completely evaluated, and however, no history of any oral glucose tolerance test done, no history of headache, blurring of vision, sudden pedal edema, and blurring of vision, and any raised blood pressure complaints, and no history of polyuria and polydipsia. She was admitted for this complaint in the hospital. Here, a complete evaluation was carried out, and certain blood investigations and urine investigations were carried out. And she was diagnosed with decreased hemoglobin, and was advised to have some blood transfusions. One day back, she was transferred with 1 pack cell volume with no any reaction observed. And the further plan of management is not discussed with my patient. She is gravida 4 para 3, and her first pregnancy was 6 years back. It was spontaneous and unbroken conception. Ended up in the lower segment cesarean section at some private hospital due to failed progress of labor. And the baby was alive and healthy and with good Apgar score, but died in the first month of his birth due to some diarrheal illness. Her second pregnancy was 4 years back. It was also spontaneous and unbooked conception, and she had not followed any doctor for during that natal period also, and ended up in the lower segment cesarean section due to previous one cesarean section at some private hospital. That baby was also born with a good Apgar score, but died at the second month of his birth due to some diarrheal illness and vomiting. The exact cause is not known to my patient. However, she was saying that both of the babies were normal looking, but they have not gained the proper weight after their birth. So and they were reluctant to feed, and they died. Her third pregnancy was 2 years back. It was also spontaneous and unbooked conception, but she remained compliant and remained booked in that pregnancy. And in that pregnancy, a baby boy was born in the private hospital by the lower segment cesarean section due to previous two lower segment cesarean section and in under spinal anesthesia. And that boy is alive and healthy and is of 2 years. No, my patient is having previously the normal menstrual cycle, and there is no history of any bleeding during menstruation, in dyspareunia, dysmenorrhea, or any intermenstrual or the postcoital bleeding, and no any contraception has practiced till time. However, she was practicing the very matter of the contraception. No any personal or the family history of diabetes, tuberculosis, asthma, hypertension, and any chronic liver or the renal disease in my patient in her family. She is previous 3, however, no any further surgeries was carried out in my patient. She is non-smoker, non-addict, and having no chronic drug allergies. Lives with her husband and her children at her home, and the husband is the sole earner of the family, and the basic necessities of life are met with difficulty. A young age lady sitting comfortably on couch in a left lateral position with a granula in hand, and a well-oriented to time, place, and person. Answering my questions carefully with a body mass index of 27 kg per meter square. She is looking pale, and the sclera was also is of yellow color, but there is no koilonychia seen, but there is no koilonychia or the clubbing was present. Her oral hygiene is not satisfactory. The thyroid is not enlarged, and both of the thyroid is not enlarged, and on the breast examination, the breasts were normal looking and no any lump palpable in all of the 4 quadrants of the breast. On chest examination, there is normal vesicular breathing with no added sound, and on cardiovascular examination, there is normal first and second heart sound with no added murmurs, and no sacral edema was present, but the pedal edema was positive but the swelling of the feet is present in my patient. On the abdominal examination, abdomen looks protuberant with the centrally placed umbilicus moving the respiration with the scar mark present in the lower abdomen. And on palpation, there is 26 weeks fundal height with fetal cardiac activity with fetal heart sound is of 140 beats per minute, but the live was not appreciated due to 26 weeks gestation. And
मैम दैट्स ऑल। हेलो। हाँ जी, सॉरी मैम मैं म्यूट पे थी। अच्छा, द थिंग इज के अच्छा था, इट वाज वेरी गुड। आपने आपकी स्पीच बड़ी क्लियर है और बड़ा अच्छा आपने बोला है। मैंने आपका टाइम भी नोट किया, आपने एग्जैक्टली 8 मिनट्स में खत्म किया, मैम पूरे लंबी हो 8 मिनट। गई थी हाँ मेरे हिसाब बॉर्डर से। लाइन है, बट एटलीस्ट यू हैव यूज्ड योर टाइम ना। ये भी नहीं कि 6 मिनट के बाद ही फारिग होके बैठ जाओ। शुरू में हालांकि मुझे लग रहा था यू वर गोइंग वेरी फास्ट, लेकिन आई थिंक ठीक ही है, बिकॉज 8 मिनट्स में आपने कवर किया। अगर आप वही 6 मिनट में करके फारिग हो जाते तो मैं कहती कि इतना जो शुरू में तेज गए हो, लेकिन वो आप थोड़ा अनइम्पोर्टेंट चीजों में तेज थे, इंपॉर्टेंट चीजों में यू वर वेरी क्लियर, विच इज अ गुड थिंग। दूसरी चीज, एक चीज है कि बड़ा आई डोंट नो व्हाई, या तो वो जब बंदा एंशियस ज्यादा होता है या टेंशन ले रहा होता है तो सांस चढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आपको सांस चढ़ा नहीं, होता है, मुझे आई डोंट नो। फ्लू हुआ है एक्चुअली मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, so that doesn't really look good even in exam पे। ये दफा होता है ना, कैंडिडेट हो या वो, उसको एग्जाम सांस के चढ़ा आगे होता है, भी होगा एग्जामिनर कुछ आपसे। फाइंड करते हैं इस चीज को कि सांस क्यों चढ़ा हुआ है, मतलब आपने बड़ा अपने आप को कंपोज रखना होता है। अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री वाज गुड। आई कुड सी कि आपने हमारे बड़े लेक्चर्स सुने अनीमिया के, आई एम श्योर यूट्यूब के ऊपर भी, क्योंकि आपका काफी ज्यादा करेक्टेड ही किस्म की हिस्ट्री थी, विच वाज रियली गुड। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन अच्छा नहीं था फ्रैंकली, उस पर बात कर लेंगे। इस अभी हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे बात कर लेते हैं, फिर आगे इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री के अंदर ऑब्वियसली बायोडाटा वाज वेरी गुड, वो सारा ठीक था। आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मेरे हिसाब से ठीक थी, लेकिन एक बहुत मेजर एलिमेंट आप भूल गए प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में बताना, येलो डिस्कलरेशन ऑफ आईज। वो जॉन्डिस का हिस्सा हिस्सा जॉन्डिस जो था एक्चुअली उसने वो कंप्लेन नहीं की थी पेशेंट ने, वो मैंने खुद ऑब्जर्व किया था। वो मैंने आपको बोल दिया हिस्ट्री में कि उसने कंप्लेन की, लेकिन वो मैंने खुद ऑब्जर्व किया था, उसने नहीं की थी। मैंने फर्स्ट ठीक टाइम ऐसे अनीमिया के साथ जॉन्डिस देखा था। ठीक है, फिर वो यही होता है कि बंदा खुद ही पूछ लेता है कि अच्छा ये जो आपकी पीली, लाइक आप जब बात कर रहे हो हिस्ट्री ले रहे हो, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछो, आप खुद ही अच्छा आपकी जो आंखें पीली हुई हैं ये भी आपने नोट की हैं, ये कब से है? फिर वो कहती है कि जी अच्छा ये पिछले एक हफ्ते से। तो वो भी फिर, जी। बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज यू सेड कि योर पेशेंट इज हैविंग जॉन्डिस, हाउ कैन यू मिस इट इन योर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो चीज है एग्जाम में, याद रखो आप सारे। बट आई वुड लाइक टू हैव अ क्लास जिसमें पूरा मैं डीडी डिस्कस करूं, बल्कि अगली क्लास ही चाहे रख लेंगे जिसमें सिर्फ डीडी डिस्कस करूं, ऑब्स और कहीं नहीं, क्या बिकॉज एग्जाम बड़ा करीब आ गया आप लोगों का, और ये डीडी और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है ना, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है पार्ट 2 के वाइवे में। जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है ना, वो सुन के आपको भी पता हो आपका केस के, गायनी इज वन फील्ड जिसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट विल टेल अस कि हमारे मरीज का डायग्नोसिस क्या है, चाहे वो गायनी है या वो ऑप्स है। मेडिसिन सर्जरी में शायद हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से नहीं बता सकते, लेकिन गायनी इज वन थिंग कि योर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शुड बी दैट क्लियर, तो वो बता दे कि आपके मरीज का डायग्नोसिस क्या है। And if you're saying she's having a mass and bleeding, it means the case is more towards the uterine anomaly. If you're saying that she's having mass and pain but no bleeding, it's going more towards axillary or ovarian mass. If you're saying your patient is having shortness of breath with easy fatigability, it's more of anemia. If you're saying she's having shortness of breath with chest pain, palpitation, orthopnea, PND, etc., then it's more towards the cardiac anomaly problem. ठीक है ना? तो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इतनी प्रिसाइज और इतनी फोकस्ड होनी चाहिए कि आपने वो 2 लाइनें बोलनी है और समझ आ जाए कि अब अगला जो आधा घंटे की डिस्कशन है ना एग्जामिनर के साथ चलनी, 11-11 मिनट की, वो किसके ऊपर होने वाली है। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, एग्जामिनर को भी पता। तो इफ शी वाज हैविंग येलो डिस्कलरेशन एंड इफ यू थिंक दैट शी रियली इज हैविंग जॉन्डिस, जो कि आपकी एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से लगा, तो फिर ऑब्वियसली फिर लास्ट द पेशेंट वो कहेगी हाँ जी मेरी तो आंखें भी पीली होती हैं, तो फिर आप उससे भी रिलेटेड थोड़ा सा पूछ लोगे। सो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके बाद योर द रेस्ट वाज ओके फाइन, ठीक था। लेकिन इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट बात सबको बता दूं, क्योंकि अनीमिया वो चीज है जो कि आपके हर मरीज में होगा, हमारे ये, सॉरी आप लोग अपना म्यूट कर लो। ओके ओके म्यूट, ठीक है। अच्छा, तो अनीमिया एक ऐसा टॉपिक है जो कि गायनी में भी आएगा और जो कि ऑप्स के अंदर भी आएगा। जितना मैक्सिमम कवर हुआ इंशाल्लाह काफी हो भी जाएगा आज के दिन कवर। उसकी हिस्ट्री का जो पैटर्न है बिल्कुल शाहरुख ने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया। इफ यू स्टार्ट ऑफ विद द सिम्टम्स, जैसे कि डॉक्टर शाहरुख ने स्टार्ट किया था कि शी इज हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इजी फटीगेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमेशा एनीमिया के सिम्टम्स ओवरलैप होंगे कार्डियक डिजीज के साथ। जब भी आपके मरीज को एनीमिया होगा, जो कि हर मरीज को होगा, और हर मरीज में आप कहोगे कि शी इज हैविंग इजी फटीगेबिलिटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगला सवाल एग्जामिनर का होगा कि फिर आपका वो जो है तो हाउ डू यू नो दैट शी इज नॉट कार्डियक, आर यू गोइंग टू गेट द ईसीजी एको डन इन एवरी पेशेंट।
एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग बातें होती है। तो जब आप लेकिन अगर आपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे ही इतना क्लियर कर दिया कि मेरा मरीज कार्डियक नहीं है, मेरा मरीज नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एग्जाम में अनीमिया और कार्डियक पेशेंट में बड़ा फर्क है, ठीक है ना। तो वो कैसे पता होगा? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में फॉर अनीमिया यू विल स्टार्ट ऑफ विद दैट शी इज हैविंग इजी फैटिगेबिलिटी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एट वर्क एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। किस हद तक की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है? जैसे डॉक्टर शाहरुख ने बताया कि नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क करते हुए भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या उसको स्टेयर्स चढ़ के होती है, या उसको क्या होती है। और अगर किसी को इतनी सिग्निफिकेंट है, वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरह पता चलेगा कि वो इतनी सिम्टोमेटिक है कि उसको ब्लड लगाना है। उसमें आपने पूछ लेना पेशेंट से कि आपके घर का काम या जो बाकी बच्चे हैं वो आजकल कौन संभाल रहे हैं। आर यू रियली, आप मतलब घर में कुकिंग कौन कर रहे हैं, किचन का काम कौन कर रहे हैं। जो हमारे मुल्क की खवातीन है और जो एग्जाम में भी पेशेंट्स होंगे जो कि गवर्नमेंट सेटअप से आए हुए होंगे, उनका डेफिनेटली देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, दे हैव टू डू देयर हाउस वर्क। लेकिन अगर एक ऐसी खातून को वाकई एनीमिया की वजह से सिम्टम्स है, इज नॉट एबल टू डू हर हाउस वर्क ऑल्सो, वो कहेगी कि मैं तो आजकल किचन में भी नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि वाकई कुछ गड़बड़ हो गई है, उसकी एनीमिया के इतनी सिम्टोमेटिक है। ठीक है, तो आपने ये लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, इजी फैटिगेबिलिटी और आपने साथ में ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ किस हद तक की एक्टिविटीज है वो मेंशन कर देना। उसके बाद आपने जैसे कि डॉक्टर शाहरुख ने भी किया कि कार्डियक सिम्टम्स को रूल आउट करना है कि शी इज नॉट हैविंग एनी चेस्ट पेन, sweating, palpitations, or no shortness of breath and lying down, or she doesn't have to get up at night because of shortness of breath. ये अब जो 4-5 सिम्टम्स है ना, ये हमें रूल आउट करें कि शी इज नॉट कार्डियक। लेकिन अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसमें आपकी कैसे स्टार्ट होगी? उसमें आपकी इजी फिटिगेबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट नहीं होगी हिस्ट्री, उसमें आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से, पैल्पिटेशंस और थपनिया, पीएनडी, और ऑब्वियसली शी इज ऑलरेडी ऑन एनी कार्डियक ट्रीटमेंट, या वो तो और बात है। उसमें आपकी फिर बाद में इजी फिटिगेबिलिटी की बात आ जाएगी। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बेशक आप चैट के ऊपर पूछ लो, मैं साथ साथ उसको भी आंसर कर पाऊंगी। ठीक है, अच्छा, तो यू आपने कर लेना। तो उसके बाद जब आप एक दफा ये बात कर लेते हो कि आप उसके बाद कॉज, एक फिर अगली कुछ लाइनें हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज इन योर हिस्ट्री। आपका वाइवा आगे चल ही नहीं सकता अगर एनीमिया में आप हिस्ट्री में कॉज लेके नहीं सामने बैठे एग्जामिनर। कॉजेज आपको सारी पता है, वो भी डॉक्टर शाहरुख ने कुछ कवर किए हैं। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही सवाल भी कर लिए। देखो बहुत एक्स्ट्रा बातें भी जो होती है ना, जैसे कि टाइम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ गया। दूसरी चीज ये है कि वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाती है एग्जामिनर के लिए भी, बहुत एक्स्ट्रा बातें। वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखो अनीमिया किस लिए होगा, या उसको एचएमबी होगी, वो आपने एचएमबी मेंशन करनी है एचओपीआई में। आपने प्रीवियस मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री या गायनी की हिस्ट्री में करनी है तो कर दो, लेकिन यहाँ नहीं करोगे ना तो फिर आपका पॉइंट मिस हो गया, बिकॉज आपकी एचओपीआई ही डिटेल में सुनी जा रही है। जब आप आगे जाते हैं ना फैमिली हिस्ट्री, गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री, उस वक्त तक सुनने वाले की कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी होती है, या फिर सारी दुनिया को पता है और सारे एग्जामिनर्स को पता है कि बाकी का तो सबको एक एंटीनेटल की हिस्ट्री, एक एक फैमिली हिस्ट्री, गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री, पास मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री एक्सेट्रा, वो सब तो सबको याद करके आए होते हैं। मतलब वो तो सब बोल ही देंगे, लेकिन उनमें से जो फोकस बातें हैं वो आपने एचओपीआई में बोलनी होती है। तो आप उसकी बेशक चाहे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री एचओपीआई में बोल दो, या एटलीस्ट ये बात जरूर कर दो कि शी नेवर हैड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग प्रीवियसली। और थोड़ा सा ये भी मेंशन कर दो कि शी यूज्ड टू चेंज 2 पैड्स पर डे फॉर एग्जांपल, ठीक है, विद नो पैसेज ऑफ क्लॉट। और फिर डाइट, एज डाइट आपने बहुत अच्छी बता दी है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक ये चीज भी कि अगर उसकी डाइट नहीं ठीक थी, या फिर उसके वो मेडिकली कोई ओरल आयरन की गोलियां नहीं लेती रही, तो यू हैव टू मेंशन हियर अगेन वो क्यों नहीं लेती रही। ये सारी बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेटर ऑन जब आप उसको ट्रीट कर रहे होगे तो हमने वो चीजें कंसिडर करके करनी है ना। अगर एक पेशेंट कहती है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी मेडिकल ओरल मेडिसिन, तो व्हेन यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट तो फिर आपने या तो खुद उसे अरेंज करके देनी है अपने डिपार्टमेंट से, या फिर आपने, या फिर उसका कोई सोल्यूशन निकाल के दोगे ना। ये तो नहीं कि सिर्फ एक पर्ची पे आयरन लिख के दे दोगी। या फिर वो कहती है कि उसको टॉलरेंस नहीं थी उसकी, वो ले नहीं सकती, मतलब उसको उसको सिम्टम्स होते हैं, तो फिर आपने उसका हल निकाल के देना है। ठीक है, तो यू हैव टू नो एग्जैक्टली कि डाइट ठीक नहीं थी तो क्यों नहीं थी, कहीं वो वेजिटेरियन तो नहीं है, या फिर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती।
या ओरल आयरन ली या नहीं लिया, कभी किसी ने उसे प्रिस्क्राइब नहीं करके दिया, कुछ लोग कंप्लाइंट नहीं होते, उन्हें याद ही नहीं रहता कि हमने आज ओरल आयरन लेनी थी, देन यू हैव टू, देन यू आर ट्रीटिंग हर, तो हाउ आर यू गोइंग टू कंफर्म कि उसने, उसकी कंप्लायंस है, उसकी कंप्लायंस को रीअश्योर कैसे कर, मतलब ये चीजें फिर आपकी ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बातें हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हिस्ट्री, डाइट, एंड देन उसकी वर्म इन्फेस्टेशन की हिस्ट्री। आई एम श्योर ये जो आप बॉइल वाटर और वॉशिंग डिशेस एट होम, यू डोंट नीड टू रियली मैम वो आस्क। मैंने हेपेटाइटिस ओरिएंटेड बताया था, इसका हेपेटाइटिस को रूल आउट करने के लिए बताया था, ठीक है, जॉन्डिस के लिए उसका और भी तरीके है उसका, वो भी जॉन्डिस पे आते हैं आगे उसकी। बताया। लेकिन तो यू मैंने नो पूछा हाउ डू यू नो दैट इट डजंट रियली लुक गुड कि आप ये बात करो कि पेशेंट इज ईटिंग ऑन द यूटेंसिल्स व्हिच आर नॉट प्रॉपर्ली वॉश्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो यू नो वो बेचारी को अंग्रेजी समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर कल को आ रही हो अंग्रेजी समझ तो ऐसे नहीं, बस आप उसको यू डोंट रियली नीड टू आस्क ऑल दैट। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि क्रॉनिकली सिक इससे पहले कभी नहीं रही, शी नेवर हैड एनी क्रॉनिक इलनेस, उसमें आपका मलेरिया भी कवर हो गया, या शी नेवर हैड एनी फीवर, प्रोलॉन्ग फीवर विद चिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके अंदर आपका साथ में जो वर्म इन्फेस्टेशन के, उसमें आप बेयर फुट की बात कर सकते हो, पाइका की बात कर सकते हो, आप उसकी ऑल्टर्ड बाउल हैबिट सकते हो कि उसको ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया नहीं रहा, ठीक है ना। मतलब आपने मेडिकली टर्म्स में, मेडिकल के अंदर ही रहना, ये पर्सनल उसके में हमने नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है और आपने उसकी, सो ये कॉजेज आपने सारी रूल आउट की, देन यू आई थिंक मिस्ड, आई डोंट नो, मैंने शायद सुना ना कि आपने फैमिली की ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी जिक्र करना है रिगार्डिंग थैलेसीमिया स्पेशली, ठीक है, तो वो शायद आपने मिस कर दिया था। तो वो बड़ा वो भी इधर ही आना है इंस्टेड कि वो फैमिली मैंने हिस्ट्री में आए। मैंने मिस किया, मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूजन में भूल गई, इसको पहले हर अच्छा, प्रेगनेंसी से दो दो कोई बात ब्लड नहीं, लेना है, ये लगते चीज रहे मैंने वो, मिस कर तभी मैं दी। आगे आ रही हूँ, वो मैं भी आगे आती हूँ। लेकिन ये आपने जरूर करना है कि उसको थैलेसीमिया की हिस्ट्री को रूल आउट इसमें करना होता है। तो अच्छा, उसके बाद आपने बाकी रेस्ट ऑफ द एंटीनेटल हिस्ट्री वाज फाइन। जॉन्डिस की जो बात आ जाती है उसके अंदर फिर आपने जॉन्डिस का डीडी थोड़ा, और आपने जॉन्डिस का डीडी बहुत ज्यादा डिटेल में बोला ही नहीं, जॉन्डिस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, हालांकि इस वक्त अगर इफ शी इज हैविंग येलो डिस्कलरेशन तो शायद एनीमिया से ज्यादा हमारे लिए जॉन्डिस है, क्योंकि अगर उसको हेपेटाइटिस ई है तो वो तो हाईली मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी वाली चीज हो जाती है ना। और अल्लाह ना करे अगर उस हेपेटाइटिस ई है ऊपर से इतना अनीमिया है, तो वो तो बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो आपने तो फिर जॉन्डिस के पीछे लग जाओ कि उसे फीवर है कि नहीं है, उसको कोई टेस्ट हुए हैं उसका, ये जो है क्या कहते हैं उसके फैमिली में किसी और को साथ में जॉन्डिस है कि नहीं है। जो आप कह रहे हो ना, ठीक है, यूटेंसिल्स वाली बात ऑब्वियसली, या फिर आप कहो कि बाहर से कुछ खाया नहीं था, कुछ यूं करके अनकुक्ड खा लिया कुछ, अगर वो वैसे मेंशन कर सकते हो तो वो कर लो, बट नॉट लाइक उसके हाइजीन का हम नहीं पॉइंट आउट कर सकते। उसके बाद ये है कि और फिर आपने इसको जॉन्डिस को कोई इचिंग की हिस्ट्री, यू नेवर नो, फिर ऑब्वियसली वेरी लेस लाइकली, लेकिन फिर हेल्थ के साथ भी तो उसका डीडी आता है ना, तो फिर आपको उसका बीपी और वो सारी चीजें भी हिस्ट्री में भी पूछनी थी। तो आपकी हिस्ट्री से ही पता लगना चाहिए कि यू आर मोर कंसर्न्ड विद जॉन्डिस नाउ। जो फिर दो में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो फिर पहले हाईलाइट हो जाती है, जो कि आपको पता है क्या उसकी थ्योरेटिकली क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, उसके अलावा गॉल जब स्टोन्स का पूछना था, आपने मेंशन किया मेरा ख्याल है, करना है, हाँ करना है। हाँ हाँ, जॉन्डिस में करना है, बिल्कुल वो करना है। एंड वो जो सिरिंजेस का यूज या रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखो, वो क्रॉनिक इलनेस वाली बात ही हो जाती है कि वो क्रॉनिकली उसका फिर हेपेटाइटिस सी पहले हुआ है क्रॉनिकली, तो अब वो क्रॉनिक था जो अब एकदम से सडन एक्यूट वो क्रॉनिक में हो जाएगा, बट आई डोंट रियली थिंक। जो प्रेगनेंसी में 26 वीक्स पे आया उस पर जरा फोकस्ड ही रहो, जो हमारे 2-3 डीडी बनते हैं, बेशक ठीक। ऑल्सो कर दो, लेकिन हम कंसर्न है हेपेटाइटिस ई से, हम कंसर्न है कोलिसिस से, हम कंसर्न है हेल्थ से, और हम बाकी कंसर्न है कि चलो फिर बाकी के सारे डीडी उसमें आ जाते हैं, मैम ठीक मैं है। एक और पेशेंट ऑन एंड ऑफ फीवर का कह रही थी, मैं वो भी भूल गई। वो तो आजकल तो फिर फीवर का कोई कह दे तो वैसे ही सब डर जाते हैं, वो हाँ तो जी। फिर आप कोविड के फिर सारे हिस्ट्री भी लोगे। नहीं, इसके साथ ऑन एंड ऑफ फीवर के साथ येलो डिस्कलरेशन। येलो डिस्कलरेशन है तो और भी खतरनाक हो गया, तो हेपेटाइटिस सी का और भी मेंशन कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इवन चीज हैविंग येलो डिस्कलरेशन डू रूल आउट कोविड, उसका वो थोड़ा अच्छा बात है उसकी भी पूछना। लेकिन खैर, ये सारी बातें ठीक है। उसके बाद आपका, आपने जहाँ पे बीच बीच में मेंशन किया, अब मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता दूं विच यू डिडंट मेंशन मच, अगर कर दो तो हिस्ट्री और इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे यू मेंशन अबाउट पैक्स सेल ट्रांसफ्यूजन, अगर आप किसी पेशेंट में कह दो, देखो एग्जाम के अंदर कुछ 2-3 बातें होती है।
अब शायद मैं आप लोगों को थ्योरी से ज्यादा ना थोड़ी थोड़ी टिप्स बता रही हूँ, हाउ टू इम्प्रूव योर हिस्ट्री, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। थ्योरी आप सब करके आए हो, वी विल टॉक अबाउट थ्योरी एज वेल, एनीमिया का बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी। बहरहाल इसमें जो टिप्स है ना वो ये है कि जब आप कभी मेंशन करते हो किसी भी हिस्ट्री में, इट्स गायनी और ऑब्स और वॉट एवर, आपने नाम ले लिया मरीज ये दवाई लेता है या मरीज को ब्लड लगा है, आपने दो तीन बातें करनी है। अगर दवाई है तो वो दवाई तो चलो जिस भी मकसद से ले रहे हैं वो तो बताना ही है। और इफ यू कैन टेल कि वो है क्या, वो जरूर, क्या वो दवाई रेगुलरली ले रहा है कि नहीं, वो कंप्लाइंट है या नहीं, उस दवाई के साइड इफेक्ट्स उसको क्या हो रहे हैं, ठीक है। ये दो तीन बातें जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री बता दी तो वी नो कि हाउ इम्पोर्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। अब आपकी जो हिस्ट्री है ना उसी से पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि अगर आपने कल को किसी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो आपके लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही। आपने सिर्फ ये नहीं कह देना विद नो मार्क रिएक्शन, आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट यही बोली कि शी हैड ब्लैक सेल ट्रांसफ्यूजन इन द हॉस्पिटल विद नो नो रिकॉर्डेड रिएक्शन और एक्सेट्रा। तो उसमें आपने एक तो ये बात कि ब्लैक सेल ट्रांसफ्यूजन है, उसका थ्रू आउट मॉनिटरिंग होनी होती रही, वो ब्लड फ्रेश था या पुराना था, वो ब्लड उसको किसने दिया था, ठीक है ना। और उसका फिर एंड पे रिएक्शन हुआ है नहीं, थ्रू आउट बेबी मूवमेंट्स ठीक रही या नहीं। ये आपने एक स्टेटमेंट में बोलना है। बेशक आप बोल दो कि नो रिएक्शन, बट उसमें ये भी बोलो कि इट वाज दिस, इट वाज फ्रेश ब्लड व्हिच वाज डोनेटेड बाय हर ब्रदर और व्हाटएवर, एंड इट वाज ट्रांसफ्यूज्ड वन डे बैक, एंड द ट्रांसफ्यूजन वाज स्मूथ एंड कंटिन्यूअस done during the transfusion, and no reaction was recorded। इससे पता ये चल जाता है कि आपको पता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना उसको कैसे लगाना है मरीज को, ठीक है। तो ये इस तरीके से, इसी तरह आपने जब भी इसी तरह हम कोई भी मेडिसिन में बात करते हैं तो आपने वो इसी, या कोई सर्जरी हुई भी है उसकी, कोई हार्ट की सर्जरी हुई भी है, वो कब हुई थी, उस प्रोसीजर का नाम क्या था, उस हॉस्पिटल स्टे के दौरान तो कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ जो कि मेंशनेबल हो, या फिर उसका थ्रू आउट हॉस्पिटल में उसकी मॉनिटरिंग होती रही, ठीक टाइम पे वो डिस्चार्ज हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक ही लाइन में बोल रहे हैं, इसमें शायद 5 सेकेंड्स क्या 2 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन ऑब्वियसली इट मेक्स मच ऑफ अ डिफरेंस कि वो यही तो चीजें छोटी छोटी फर्क डालती हैं एक एवरेज कैंडिडेट में और एक रियली पासिंग कैंडिडेट। बिकॉज एवरेज कैंडिडेट का पता कोई नहीं, यू नो 59 और 60 में कहने को तो एक नंबर का ही फर्क है, लेकिन ये फर्क जो है ना वो जमीन और आसमान का फर्क है एक्चुअली। तो 60 तक तब आता है बंदा जब 70 की तैयारी करके जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें छोटी छोटी बातें आपको ऐड करनी होती हैं हर उसमें। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, और कोई किसी ने हिस्ट्री में कुछ ऐड करना है तो आप बता दो। हम्म, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑब्वियसली जनरल फिजिकल वाज फाइन, पेल भी थी, आई डोंट नो कंजंक्टिवा में आपने, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर खुदा ना खासा मरीज अगर जॉन्डिस भी है और एनीमिक भी है तो इतना आसान नहीं है कि आप उसका पैलर भी देखो और उसका कंजंक्टिवा का भी। बट सम हाउ यू डिड मेंशन कंजंक्टिवा स्क्लेरा में, फिर अलग अलग करके मेंशन कर दो जॉन्डिस कहाँ देखा और एनीमिया कहाँ देखा, वो सारा कुछ आपने। अनफॉर्चुनेटली जो मेन एग्जामिनेशन था वो बिल्कुल ठीक नहीं बताया गया। मेन एग्जामिनेशन हमारा था जॉन्डिस से रिलेटेड और एक ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, एक चीज और, ये जो एनीमिया का पेशेंट है ऑलवेज रिमेम्बर, अब हम इसको रूल आउट कर रहे हैं एक पेशेंट से, सिर्फ हिस्ट्री में बात कर देने से कार्डियक की बात खत्म नहीं होगी कि हमने सिर्फ ये कह दिया कि चूंकि इसको पैल्पिटेशंस नहीं है या फिर क्योंकि इसको ऑर्थोपनिया पीएनडी एक्सेट्रा नहीं है इसलिए ये एनीमिया ही है। नो, वी हैव टू प्रूव इट ऑन एग्जामिनेशन एज वेल। तो इसके अंदर आपने जीबीपी भी चेक करनी है इस पेशेंट में, आपने इसके अंदर पूरा सीवीएस एग्जामिनेशन करना है और फिर प्रूफ करना है कि आई हैव डन द सीवी एंड आई नो आई डोंट नीड टू कॉल अ कार्डियोलॉजिस्ट इन दिस पेशेंट, ठीक है ना। एग्जामिनेशन का यही तो मकसद होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमने किस और फील्ड के बंदे को इन्वॉल्व करना है, अगर थायराइड इलाज मिल गया तो किसको इन्वॉल्व करना है। तो अगर आपके ये सिम्टम्स ओवरलैपिंग थे तो हमने इसके अंदर पूरा कार्डियक करके भी, तो कल को यू नो आप या वाइवा पे अगर एग्जामिनर बात भी करे कि कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना है या नहीं बिकॉज शी इज हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो व्हाई नॉट के कार्डियोलॉजी की ओपिनियन ले लें और ये वो। तो यू कैन ऑलवेज से कि आई नो शी इज एनीमिक एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज बिकॉज ऑफ एनीमिया एंड आई कुडंट फाइंड एनी पॉजिटिव फाइंडिंग इन हर कार्डियक एग्जामिनेशन। जब आपने परफॉर्म किया होगा तो वो, और देखो जैसा मैंने कहा है कि पैक्सल ट्रांसफ्यूजन में सारी ये डिटेल्स बोलनी है। जब आप ये सारी बातें करते हो तो ये जो फजूल किस्म के क्वेश्चंस होते हैं ना जो कि बड़े सालों से फियर सा बना हुए कैंडिडेट के कि पता नहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करना है, कैल्शियम का क्या रोल है, तो पता नहीं किसका क्या रोल है।
ये जो फजूल किस्म के क्वेश्चंस है ना विच आर नॉट रिलेटेड विद अस, द थिंग इज कि ये तब उठते हैं जब लिफ्ट ही नहीं कराई जाती ट्रांसफ्यूजन को, ऐसे बस बोल दिया जाता है हाँ ब्लड लगा था, जब जब एक बॉडी लैंग्वेज से कैंडिडेट की एग्जामिनर को लग रहा है कि इसके लिए तो आम सी बात है ब्लड लगाना, तो वो फिर बहुत सारे सवाल उठाते हैं। वो बॉडी मीन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे एक्सेल क्या होता है, कितना रेशो, क्या सीरम तो कितना रेशो आरबीसी, तो बनता कैसे है, किस तरह का प्रोसेस होता है, तो इसका फलाने वाइट ब्लड सेल में क्या हो, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा सम वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग्स। तो लेकिन जब यू आर टेलिंग देम इन द हिस्ट्री, और इसी तरह कार्डियक का, इफ यू आर टेलिंग देम इन द हिस्ट्री यू आर रूलिंग इट आउट, तो कोई सवाल नहीं करता, ये टाइम नहीं ना वेस्ट होता, वरना तो टाइम वेस्ट होने वाली बात है कि हिस्ट्री, मतलब ये तो 11 मिनट में फिर एक्स्ट्रा बातें हैं ना कि कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाओ, एको क्यों नहीं कराई, ये क्यों नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ, तो ये फिर इस तरफ नहीं जाती बातें। तो एग्जामिनेशन के अंदर जो मैं कह रही थी कि आपने ये सारा नीमिया का करना है, और उसके बाद जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसके अंदर इट्स नॉट लाइक यू सेड it is a 26 week size fundus, and fetal heart rate is this, and then you probably talked about the, I don't know, like area joy. It's not at all like this. It's again, मैं पहले भी अपनी क्लास में कह चुकी हूँ, inspection, palpation, percussion we don't really need to do in every patient in ops, but auscultation yes, ठीक है। ये जो ABCD steps जो हम MBBS में पढ़ते आ रहे हैं फाइनल ईयर से, वही अभी तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। यू कैन नॉट डू ओवरलैप, यू कैन डू ऑस्कल्टेशन बिफोर पैल्पेशन, यू कैन नॉट टॉक अबाउट इंस्पेक्शन एट द एंड, ठीक है ना। आप आपको इन्हीं स्टेप से चलना है, वरना बनता ही नहीं ना, इसका मतलब है वो बेस ही नहीं। उसी तरह देखो इंस्पेक्शन उसी तरह कि चलो प्रोट्रूबरेंट है, umbilicus central है, I can see scar mark in the lower abdomen, lower transverse scar mark due to previous cesarean sections, it's healthy or it's having a keloid formation, and then you talk about stria and any pulsations, any varicosities, etc etc, जो कि थोड़ा सा आपकी लिवर डिजीज को भी रूल आउट कर देगा। और उसके बाद और ठीक है, मतलब एसाइटिस का भी अगर आपने रूल आउट करना है तो हम पैल्पेशन पे करेंगे। फिर पैल्पेशन में सुपरफिशियल पैल्पेशन, देन यू टॉक अबाउट डीप पैल्पेशन जिसमें स्पेशली लिवर को पैल्पेट करके देख लेना। ये तो 26 वीक्स पे अगर ज्यादा फंडल हाइट हो तो लिवर बड़ा मुश्किल होता है पैल्पेट करना, वो फिर नहीं हमने करना। लेकिन अगर ये 22-26 वीक्स तक की आई हुई है तो फिर तो लिवर चेक किया जा सकता है, तो वो आपने चेक कर लेना। उसके बाद जब आप ऑप्स के एग्जामिनेशन पे आए हो तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इंस्पेक्शन एंड वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट पैल्पेशन। तो पैल्पेशन के अंदर आपने क्या करना है कि ओके, on deep palpation fundal height is this and presentation is probably variable 26 weeks पे you can tell at least it's transverse cephalic or it's breech, तो आप कह सकते हो Liker seems to be adequate, it's a case of anemia can cause preterm labor as well, so you have to talk that there were no palpable contractions at the time of examination, Liker seems to be adequate, or if you don't want to talk about estimated baby weight, so no need to talk about it. However, you can say that's less than 1 kg 26 वीक्स के ऊपर, वो हम कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। और ऑस्कल्टेशन हमेशा एंड पे आती है, ठीक है। और फिर फीटल हार्ट रेट एंड पे बोल रहे हैं, वो नहीं करना कि ये जिस तरह की है, सो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। वो कंफ्यूजन थी, अच्छा हुआ क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जिस सीक्वेंस में आप गायनी में भी और ऑप्स में, मैं बता रही हूँ ना, एग्जामिनेशन के वाइवे में सारी हिस्ट्री में सोए होंगे एग्जामिनर, आपकी HOPI सुन ली, उसके बाद फिर देखो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इतने सारे लोगों का वाइवा ले रहे हो, 4-5 दिन लग गए वाइवे पे वाइवे लिए जा रहे हो, और हर एक पे A to Z तक आप कंसंट्रेशन लेके बैठे रहो। Humanly at times I don't know but they do it, but I don't know, it's not really, it's very hard to do। तो आप उसके अंदर लेकिन जिसमें वो जागते हैं, एक आपके HOPI में और आपके फोकस्ड एग्जामिनेशन में, वो क्या ढूंढ रहे हैं कि आपने अनीमिया का तो कंप्लीट एग्जामिनेशन किया एंड यू नीड टू हैव अ कांसेप्ट एज वेल। ऐसा ना हो कि उधर आप कह रहे हो कि मरीज का देयर इज नो पैलर बट शी इज हैविंग कोइलोनिकिया, ये ना हो कि आप कह रहे हो कि वेरी क्रॉनिक किस्म का अनीमिया एंड देयर इज नो कोइलोनिकिया। ये चीजें हैं जो जो आपको जो मुंह से बोल रहे हो वो पता हो कि व्हाट इज कोइलोनिकिया, व्हाट इज क्लबिंग, where do you exactly see jaundice, where do you exactly see anemia, and what do you really mean कि JVP है या नहीं है। और ये सारी चीजें किसी वो जो हमारी MBBS फाइनल ईयर की होती थी ना, आई थिंक बेड साइड, बहुत ही अच्छी किताब है, उस अगर किसी ने अभी तक संभाली हुई है, ये सारी चीजें एक लाइन में बस पढ़ने वाली चीज है।
उसमें से ये चाहे देख लें कि एग्जैक्टली है क्या। मैं थोड़ा सा अनीमिया से रिलेटेड करके आपको बता भी देती हूँ। तो और फिर उनकी जाग खुलती है आपके ऑप्स के एग्जामिनेशन में। और अगर ऑप्स का एग्जामिनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फ्रैंकली आई वुड आल्सो से कि दैट कैंडिडेट डजंट डिजर्व टू पास। क्या फायदा है। कार्डियोलॉजिस्ट को अगर हार्ट का एग्जामिनेशन नहीं करना आएगा तो वो कैसा कार्डियोलॉजिस्ट है। गायनोकोलॉजिस्ट को ऑप्स का एग्जामिनेशन नहीं करना आएगा तो फिर किधर जाए। ठीक है ना। तो ऑप्स के एग्जामिनेशन में कोई माफी नहीं। तो ये सारा बाकी तो आई थिंक other than this I'm sure you'll improve your examination as well। तो वो ठीक हो जाएगा। जो अनीमिया उसके अंदर अच्छा अब इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है हिस्ट्री एग्जामिनेशन में तो कर लें। कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं डॉक्टर रूबा प्लीज बताएंगे जॉन्डिस के लिए हमने क्या स्पेशल हमने एग्जामिनेशन पे देखना है। जस्ट हमने वो येलोनेस पल्सेशन देखनी है स्किन वेरिकोसिटीज पल्सेशंस और ऑब्वियसली एसाइटिस के ऊपर अगर कमेंट करना चाहते तो कर दो वरना नहीं। वो तो नजर भी आ रहा होगा। और बाकी तो जॉन्डिस और क्लबिंग और एडीमा पे पामर comment किया था। नहीं जॉन्डिस के लिए पामर एरिदीमा और स्पाइडर नेव आए जिस तरह से हम पहले बिल्कुल पढ़ते हाँ थे। स्पाइडर नेवा है बिल्कुल। बिल्कुल वो सारा कुछ वो उस पे कमेंट बस करना है कि नो सच ऑल दीज प्रेजेंट। किसी ने मैम क्वेश्चन प्लीज थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दें कि कार्डियक एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे। हाँ यही चीज किसी ने चैट पे भी क्वेश्चन किया हुआ है वही मैं बताने लगी थी। देखो जो जेवीपी है ना इफ यू स्टार्ट ऑफ विद जेवीपी इन कार्डियक एग्जामिनेशन एनीमिया के पेशेंट में देखेंगे जस्ट टू रूल आउट कि ये कार्डियक है या ये एनीमिक है। उसके अलावा जेवीपी हर उस पेशेंट में जो कि वैस्कुलर डिजीज है जैसे इवन हाइपरटेंशन या पीआईएच के पेशेंट में भी इट्स बेटर टू सी जेवीपी राइट। एंड ऑब्वियसली एनीमिया के अंदर और कार्डियक पेशेंट के अंदर। और कार्डियक एग्जामिनेशन में जैसे हम कार्डियक एग्जामिनेशन करते हैं वी इंस्पेक्ट द चेस्ट एंड वी डू पल्पेशन। हम उसकी पूरी पल्पेशन करके उसके मर्मर्स अगर कोई पल्पेट हो रहे हैं या कोई पल्सेशन पल्पेट हो रही है वो देख लेते हैं। देन वी पल्पेट द एपिक स्पीड और फिर देन वी इवन डू पल्पेशन ऑफ ऑल द हार्ट साउंड्स एंड देन वी डू ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हम उसकी सारी मर्मर सुनने के लिए बेसिकली एपिक स्पीड पे रखेंगे। उसके मर्मर को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद करवट दिला के मर्मर सुनेंगे और फिर सारी हार्ट साउंड वाली जगह पे देख लेंगे। दैट्स इट। और मैडम वो जो रेडिएशन ये तो नहीं देखेंगे। क्या यानी मैडम आप कह रही हैं कि हमने पहले उसकी वो हीव देखेंगे और वो जो हाँ पैल्पेशन जो होती है बिल्कुल पैल्पेशन देखेंगे और 4 कार्डियक एरियाज देखेंगे जेवीपी देखेंगे। जैसे कार्डियक एग्जामिनेशन होता है किसी दिन अगर कार्डियक डिजीज का केस किया तो उस पर हम और भी डिटेल में कार्डियक एग्जामिनेशन कर रहे हैं बिकॉज एनीमिया और के मैडम इस केस में तो मैडम वो तो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट नहीं होगा ना ये जो रेडियो रेडियल और रेडियो फेमोरल डिले होता है वो तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इसमें नहीं नॉट एट ऑल। मैडम ये बता रही हूँ कि एस्टिमेटेड या नो स्टोमाटाइटिस हम किस तरह से नो क्या नो करके हम बोल सकते हैं कि नो ग्लोसाइटिस स्टोमाटाइटिस कीलोसिस जो कि ओरल अल्सर जो कि हम एनीमिया में सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। इतना ना बोले बस ऐसे बोलते हैं ओरल अल्सर्स कोइलोनिकिया इज इम्पोर्टेंट। और ये जो बाकी आप बोल रहे हो दिस इज रियली यू नो ये बहुत ही कोई रेयर किस्म की और मुश्किल किस्म के वर्ड्स हैं। इतना डिटेल आई डोंट रियली थिंक सो। ओरल अल्सर्स आर इम्पोर्टेंट वो अगर डेफिनेटली वो जैसे ओरल हाइजीन और उसकी बात हेल्थ की बात ओवरऑल कर ली थी तो वो ठीक है। लेकिन ये कि इतना भी करके ना तो वो फिर एक नई बहस शुरू हो जाती है। ठीक है कुछ ये एक और डॉक्टर पूछना चाह रही थी वो ओवरलैप कर रहा था उनका। और कोई क्वेश्चन। जी डॉक्टर वो मुझे ये पूछना था कि एस्टिमेटेड फीटल वेट जो अभी आप बता रही थी कि अराउंड 1 kg बताना है इसमें लेस क्या। देन 1 kg it's not like हाँ around obviously not around 1 kg 26 weeks पे around 1 kg is no word to say it's definitely less than 1 kg। अगर 28 weeks and more देखो जो estimated baby weight है ना frankly अगर आप एग्जाम में बताओगे even in any abdominal examination हमेशा 500 ग्राम्स का फर्क रख के बताते हैं। जैसे 2.5 से 3 kg 1 to 1.5 kg। अब 28 वीक से पहले एक तो इतना कोई सिग्निफिकेंट है नहीं एस्टिमेटेड बेबी वेट बट वी कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन इट व्हेन वी डू पी एग्जामिनेशन वी नो द वेट ऑफ द बेबी नॉर्मली। हमें इनफैक्ट आमतौर पे अल्ट्रासाउंड की भी इतनी जरूरत नहीं होती बिकॉज आई एम श्योर जिस तरह आप लोग भी
में तो अल्ट्रासाउंड का तो हम देखते नहीं कि कितना वेट दे रहे हैं, हम तो अपनी फाइंडिंग पे चल रहे होते हैं। तो less than 28 weeks and before it has to be less than 1 kg, and when it is less than 1 kg you can definitely tell on palpation case less than 1 kg, ठीक है ना। और डॉक्टर रूबा, आपने क्या कहा कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हमने ऑस्कल्टेशन भी करनी है, ऑब्स के मैं एग्जामिनेशन कह रही थी कि ऑस्कल्टेशन होएगी नहीं ना। हाँ ऑस्कल्टेशन, यस ऑस्कल्टेशन इज द फीटल हार्ट रेट ना, इट्स ऑस्कल्टेशन। आप ओके बेबी की अच्छा हार्ट रेट देख रहे हो तो यस यस ऑस्कल्टेशन है ना। ओके मैं परकशन समझी, परकशन नहीं होती इसमें ऑप्स में। जी परकशन सिर्फ पॉली वाले पेशेंट में देख लो, वो जो क्या टैप करते हैं वो क्या उसे कहते और हैं। डॉक्टर रूबा, हाँ, हमारे पास पेशेंट स्टेबल बैठी हुई है और उसको कोई सिम्टम्स नहीं है एट प्रेजेंट, यानी कि एट रेस्ट, तो अगर वो हिस्ट्री दे रही है सिम्टम्स की, फिर हम उसको ब्लड लगाएंगे। अगर क्या, सॉरी पेशेंट क्या है, सिम्टम्स की हिस्ट्री दे रही है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और लेथार्जी, फटीग वगैरह, वो काफी कहती हाँ है ये कि ब्लड वाली बात मैं करती हूँ कि हाँ ब्लड किस जी में लगाएंगे और किस में नहीं। ओके ये बहुत थैंक यू ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, अब मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं ताकि वो ना हो। ठीक है, देखो ये जो अभी डॉक्टर उस्मान ने भी बड़ी अच्छी वैसे बातें की थी नीमिया से रिलेटेड, ओरल अल्सर और बड़ी मुश्किल मुश्किल कुछ टर्म्स बोली हैं, वो क्यों है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जल्दी से हल्का सा दे देती हूँ कि जो आयरन है ना, आयरन बॉडी के अंदर एक स्टोर फॉर्म में होता है, एक फंक्शनल फॉर्म में होता है। आई होप यू ऑल नो दैट, इफ यू डोंट नो दिस चलो आज पता चल गया। जो फंक्शनल फॉर्म है उसका क्या काम है, उसका काम है कि ये बॉडी के अंदर जैसे कोइलोनिकिया विच इज द एक्चुअली स्पून शेप्ड नेल्स हो जाते हैं। नेल पेड जो है वो फॉर्म्ड नहीं रहता। स्ट्रेंथ ऑफ द मसल, जब आयरन नहीं उसके अंदर तो वो मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं होगी। आयरन एंजाइम्स को स्ट्रेंथ देता है, एंजाइम्स के फंक्शन में और फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। आयरन इज इम्पोर्टेंट इन द मसल्स एज वेल, मायोग्लोबिन यू नो उसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है। तो जब जब वो नहीं होगा तो स्पून शेप्ड वो हो जाएंगे, ओरल अल्सर्स हो जाएंगे। जब हमारी म्यूकोजा को ही स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो वहां पे अल्सर, और जब अल्सर होंगे तो यू नो डैमेज ऑफ द म्यूकोजा, एक प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है वो। तो बेसिकली ये सारा इसका है। सो बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाने के लिए आई एम श्योर डॉक्टर अस्मा को ये सारा कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाई शी टॉक्ड अबाउट इट व्हिच इज वेरी गुड। लेकिन if not all, yes, we at least need to talk about colonic, you at least need to talk about oral ulcers etc. But first do rule out कि पेशेंट फेल है भी कि नहीं। ऐसा ना हो कि मरीज आपका की हीमोग्लोबिन 10 है या इससे ज्यादा है और आप बैठे हुए उसको कहानियां लेके। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पेशेंट रियली हैज टू बी पेल एंड शी शुड बी एनीमिक बिफोर यू टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। तो अच्छा अब इन्वेस्टिगेशन चलें, डॉक्टर शाहरुख बताएं क्या क्या मांगेंगे। एक मिनट, हेलो, हाँ जी जी मैम, ब्लड ग्रुप विद RH फैक्टर ठीक है, वो एंड बी मैम सारी, पॉजिटिव है। I'll tell you the reports, ठीक है मैं बताऊंगी and then you'll manage the patient, बी पॉजिटिव। ओके मैम, कंप्लीट ब्लड काउंट विद डेट इंक्लूडिंग द हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर। मैम प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अगर आप उसी के इसको डिस्कस करना चाहते हो तो इसी का बता दो, उसी को पहले कर लेंगे। मैम इसकी तो 6 थी। प्री ट्रांसफ्यूजन ठीक है, और हाँ बाद जी में मैम, बाकी इसके इंडिसेस तो नहीं थे पड़े हुए, ये बेचारी बस ऐसे सी थी, अभी एडमिट हुई थी हीमोग्लोबिन इसके। मांगोगे और मैम मैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड प्लेटलेट काउंट। ठीक है वो नॉर्मल है। मैम आई वांट टू हैव द RBC इंडिसेस इंक्लूडिंग MCH, MCV एंड MCHC। चलो ये अभी नॉट अवेलेबल है, ये हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। मैम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पिक्चर फॉर द RBC मॉर्फोलॉजी, प्रेजेंस ऑफ एनी हेमोलिसिस। ठीक है वो भी नहीं अवेलेबल, जो कि नहीं काउंट एग्जाम में नहीं जी। देंगे शुरू में। अच्छा और मैम सीरम फेरेटिन ऑफ माय पेशेंट इफ अवेलेबल। ठीक है, और क्या मांगेंगे। मैम ब्लड शुगर रैंडम and the viral markers status including hepatitis B surface antigen, anti-HCV and ठीक है hepatitis A and E viral IgM and IgG, and urine committee examination for microscopy and biochemistry for the presence of any proteins, glucose, pus cells, RBCs or any nitrites. ठीक है And ma'am, I want to have the dating नॉर्मल है scan of चलो। my patient for जी आगे क्या कहा है। ma'am, dating scan of my patient for crown rump length and the gestational age, fetal cardiac activity with date. An ठीक anomaly scan for the presence of any anomaly,
and the fetal biometry, and the recent scan for fetal biometry, placental localization, lie, and the presentation, and fetal well-being. और And ma'am, as ma'am, I want to have the liver function test of my patient for serum bilirubin and AST and ALT, and I also want to have the PT APTT status of my patient if the LFTs are deranged. ठीक है और And ma'am, abdominopelvic ultrasound for the status of liver and spleen. गुड ठीक है और मैम स्टूल फॉर ओवा एंड सिस्ट में नहीं मांगती, पता नहीं क्यों, पर मेरा नहीं दिल करता कभी भी मांगने का। अच्छा चलो ठीक है और कोई और बता दो, कोई और हेल्प कर दे। मैडम पेरिफेरल स्मेल मांगा है इन्होंने, मैंने दिया ही नहीं। और क्या मांग सकता है मैम? बस यही मुझे होगा। नोट्स भी मांग लो ना। हाँ जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नोट्स। ठीक है और फिर ये भी कह दो मैम तुम मैं एको भी मांगूंगी, एको मांगोगे? एको भी ठीक है, मांगो। बात करेंगे। ठीक है, ईसीजी क्यों नहीं मांग लेते? अगर एको मांगनी है ईसीजी कराओगे तो डिसाइड होगा ना एको की जरूरत है। एको इतनी आसान नहीं है मैडम क्योंकि हम्म स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज मालूम करना चाह रही हूँ मैं, जो कि फीमेल में एज में प्रेग्नेंट होने के बाद ज्यादा पता चल रही होती अपने है। अपने केस को पीरियड ना को कॉम्प्लिकेट ना करो। अपने केस को कॉम्प्लिकेट ना करो। दिस पेशेंट इज नॉट हैविंग स्ट्रक्चरल एनॉमली, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा अगर एनॉमली आई भी ना हार्ट के अंदर, तो वो एनॉमली इसकी आ रही है उसकी वजह से क्या कहते हैं अनीमिया के, मे बी स्ट्रेस की वजह से, मे बी कार्डियोमेगाली इज देयर, और बिकॉज ऑफ एनीमिया हार्ट जो इफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है, व्हिच कैन बी पिक्ड बाय ईसीजी। बस आप उसकी ईसीजी मांगो एंड देन cardiologist will decide whether she needs an echo or not. If you really think that cardiologist, because if you are getting ECG done, then definitely you need a consultation by a cardiologist, which is justifiable. Justifiable इसलिए है क्योंकि आपने उसका वो कराना है, क्योंकि she is having shortness of breath। आपको ठीक है, मुझे एग्जामिनेशन पे कुछ नहीं मिला, देखो हाँ ईसीजी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि इतना कोई यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, बट यस एको इज समथिंग जो कि काफी यूज ऑफ रिसोर्सेज है। 5,000 उसकी फीस है प्राइवेट अस्पतालों में, फिर अफेक्ट होगी। ठीक है, तो वो फिर ईसीजी तो चलो इमरजेंसी में हो जाती है ना, इमरजेंसी में साथ ही निकाल दी ईसीजी, उसके थोड़े से चार्जेस हो गए वो, लेकिन गवर्नमेंट साइड में ठीक है फी होगी, बट कार्डियोलॉजिस्ट नीड्स टाइम टू डू इट। आप कार्डियोलॉजिस्ट का टाइम, मशीन, रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं, तो लेट कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड। इफ यू आर गेटिंग ईसीजी डन, आप सेफ साइड पे हो गए, फिर आपका काम नहीं, आपने इस मरीज में को नहीं किया। ठीक है ना, एक्सेप्ट के बहुत मैम ज्यादा क्या प्रीवियस सेक्शन नोट्स मांग सकते हैं? हाँ मांगोगे बिल्कुल। और एज यू सेड बिकॉज यू मिस्ड इन द हिस्ट्री के उसके प्रीवियस भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती रही, तो वो भी मांगोगे। एक चीज और एंड पे कर दो कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड ऑन माय यस ऑन रिजल्ट माय ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। मैंने वो दिया नहीं। कुछ लोग फिर भी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस मांग लेते हैं, व्हिच आई डोंट रियली फेवर। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अगेन आई डोंट नो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है नहीं, हमारे जमाने में नहीं हुआ करता था, एंड इट्स एन एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन, टेक्स एटलीस्ट 1 वीक उसकी रिपोर्टिंग में। और बट एज यू नो फ्रॉम सीरम फेरेटिन एंड आरबीसी इंडिसेस दैट पेशेंट इज हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, देन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गेटिंग द हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस डन। बट कुछ डिपार्टमेंट्स का प्रोटोकॉल होता है कि वो एनीमिया में एनेमिकेस करा लेते हैं। इस पेशेंट में इतना जस्टिफाइबल नहीं है विदाउट एनी कॉज हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना, क्योंकि शी इज प्रीवियसली, अगर इसका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में मसला होता तो इसको पता होता कि वो थैलेसीमिक है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि उसके किसी बच्चे में मतलब कई अगर 3 ऑपरेशन कराती आई है तो थैलेसीमिया रूल आउट हो चुका होता है। चीज ग्रेविडा 4 प्राइमरी ग्रेविडा हो तो चलो हम कहते हैं कि मिस हो गया, बट इस तरह नहीं। तो अगर आरबीसी इंडिसेस पेरिफेरल स्मेयर एंड सीरम फेरेटिन इज गोइंग मोर टुवर्ड्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आई डोंट रियली थिंक कि आपको उसको भी जरूरत है, तो यू कैन जस्टिफाई, तो वो कर सकते हो। अच्छा और मैडम जी सबीन मैडम वो ये भी तो कहते हैं ना कि सीरम फेरेटिन अगर लो है पेशेंट का, आयरन करेक्शन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करेक्ट करने के बाद फिर आप एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएं। उससे पहले भी कराओ तो रिजल्ट तो वही आएगा। अगर आप उसकी आयरन करेक्शन कर भी दोगे, मतलब करो या पहले कराओ या बाद में कराओ, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द आयरन करेक्शन। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एचबीए या एचबीएफ की जो रेशियो है उसका ताल्लुक आयरन की ट्रीटमेंट से नहीं है। इफ शी इज थैलेसीमिया ट्रेट तो शी विल स्टे थैलेसीमिया माइनर पेशेंट, इवन अगर आप उसको आयरन देते हो या नहीं देते हो, राइट।
तो थैलेसीमिया का डायग्नोसिस इज ऑन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट्स नॉट रिलेटेड विद ट्रीटिंग लो फेरेटिन स्टोर। आपकी बात मुझे समझ आ गई, आप कहना चाह रहे हो कि मिक्स्ड जो कॉज होती है फॉर माइक्रोसिटिक एनीमिया विच इज थैलेसीमिया प्लस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसमें yes it can be there, but again because it's history cesarean section की, then if serum ferritin is markedly low and then all the peripherals में जो MCH MCV MCHC जब जो बिल्कुल बहुत लो है, अगर मिक्स पिक्चर हो उसके अंदर MCHC बहुत लो नहीं होता, it will be in the average range, तो वो एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि आपको उससे पता चल जाता है, ठीक है ना। और फिर एट टाइम्स यू डू गेट टारगेट सेल्स एक्सेट्रा इन द पेरिफेरल स्मीयर एज वेल, तो इस वजह से आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन तो आई डोंट रियली थिंक, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स का बड़ा क्लियर प्रोटोकॉल होता है कि वो हर एनीमिक पेशेंट में इवन बिफोर दे गेट द रिपोर्ट ऑफ RBC indices and peripheral smear and serum ferritin साथ ही हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी भेजा जाता है, तो इट कैन आल्सो बी जस्टिफाइड। जैसे कि सबीन ने बात की, मिक्स्ड पिक्चर है, आप सिर्फ एक MCHC की कितनी सेंसिटिविटी है जिसके ऊपर डिपेंड करके आप वो करा ही नहीं, सो यू कैन जस्टिफाई बोथ। अगर आपके डिपार्टमेंट में होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट्स जस्टिफाइबल। अगर आप नहीं कराते, जैसे मैंने शायद ऐसे किया कि हर एक में नहीं कराया जाता हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो मैं उसको जस्टिफाई, तो आप दोनों चीजों को जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, तो वो वैसी बात नहीं। तो ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट पे जरूर बात कर लेते हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम डिफरेंट सिनेरियोज बना के करेंगे, टाइम थोड़ा सा है हमारे पास, कर लेते हैं। और ये आपने डेली प्रैक्टिस अपनी करो बिकॉज अब एक महीना से कम ही आई एम श्योर रह गया एग्जाम में, और ये अनीमिया है, अनीमिया पे तो हर एक की बात होगी, तो ऑप्स के अनीमिया को कर लेते हैं डिस्कस, टाइम बचा तो जल्दी से गायनी के पेशेंट के अनीमिया को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलो कहाँ गए, हाँ शाहरुख, आप मैनेज करो पेशेंट को, इट्स एन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया फ्रॉम ऑल द लैब्स, सब कुछ लो है। मैम सीरम फेरिटिन भी लो है, हाँ सब कुछ लो है। अच्छा मैम, काइंडली गिव मी द रिसेंट स्कैन पैरामीटर्स। चलो इस वक्त लेट्स फोकस ऑन अनीमिया ओनली, ठीक है, ताकि हम अनीमिया की मैनेजमेंट को अच्छी तरह डिस्कस कर लें, बाकी सारा कुछ ठीक है। लेट्स डिस्कस, इट्स शी इज हैविंग 6 हीमोग्लोबिन, और जैसा आपने कहा पहले और कुछ नहीं हुआ हुआ, लेट्स स्टार्ट ऑफ कि उसको ब्लड भी नहीं लगा हॉस्पिटल में, शी हैज कम विद 6 हीमोग्लोबिन एंड दिस इज द सेम पेशेंट जो आपने बताई है, एंड शी इज हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एट 25 plus 6 weeks. Okay. I will counsel my patient regarding her diagnosis that she is gravida 4 para 3 with previously lower segment cerebral section with severe anemia, and I will counsel her regarding the fetal-maternal implications of the anemia, and regarding I will counsel her regarding my aim of management, which is to optimize her basic health profile and the optimization of her hemoglobin status. For that, I will counsel her to be admitted, and will counsel her regarding the dietary intake of green leafy vegetables, of meat, and of eggs and poultry products, and also counsel her regarding her hygienic conditions, and how to improve them. And I will deworm her by giving her the tablet albendazole, 2 tablets, 3 days. And after that, as her hemoglobin is 6 gram per deciliter and she is presented with a symptomatic anemia and shortness of breath, I will plan the transfusion of my patient to build up her anemia to at least 7 gram per deciliter by giving her the Paxil volume under the Lasix cover. And I will take care during the transfusion that no any transfusion reaction occur, and will do the fetal-maternal monitoring on the side, and will be sure that the blood should not be old and should be fresh. After the correction of anemia to at least 7 gram per deciliter, and as my patient becomes less symptomatic, I will also involve the multidisciplinary team, as my patient is having the yellow discoloration of eyes along with the history of the jaundice and the fever. I will involve the physician for the management of her jaundice, and I will carry out the whole workup of the jaundice, including the abdominal pelvic ultrasound and the viral marker status, and will manage her according to the symptomatic treatment, and will tell her that this condition has the mortality of 50%. So we should be take care of that, and she should remain be admitted until the optimization of her complete health status. Once she will be symptom free and the jaundice will be settled, I will discharge her with the advice to be compliant to the dietary intake of the iron, calcium,
as she is having the 7 gram per deciliter hemoglobin after the buildup of the HB by giving the PEG cell transfusion, I will further transfuse. She is having the 7 gram per deciliter hemoglobin status, so I will plan the intravenous iron transfusion by giving the by giving the 5 transfusions of parenteral iron transfusion iron sucrose, and will build her HB to at least 11 gram per deciliter, and then will discharge her with the advice to be compliant on the oral medication and the dietary intake of the green leafy vegetables and meat. मैं बताती We'll हूँ, call her ठीक है, for the ये बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन आई रियली वांट टू डू सम करेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट नहीं है किसी को, मैं बता रही हूँ। आपने ब्लड कब लगाना है और कब नहीं लगाना, आपने आईवी कब देना है और नहीं देना, ओरल कब देना है और क्यों नहीं देना, दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। ब्लड हमने सिर्फ तब लगाना है जब पेशेंट, स्पेशली देखो यार, पेशेंट इज एट 25 to 26 वीक्स, आपने बात किस तरह स्टार्ट करनी है? आपने चलो ठीक है, यू टॉक्ड अबाउट द काउंसलिंग, अगर आप मेरे, मैं इसके बीच में बिकॉज टाइम मैंने कहा ज्यादा हम कॉन्सेप्ट की बात कर लें ताकि आपको क्लियर हो। सारी दुनिया फेल हो जाती है अनीमिया में, सारी दुनिया, मैं बता रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई वी जस्ट मिस दिस थिंग कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ब्लड कब लगाना है, आयरन का। ऐसे नहीं करना। 6 हीमोग्लोबिन आ गई तो क्या हुआ, लिसन टू मी। देखो अगर आप ठीक, यू टॉक दिस दैट आई विल काउंसिल, आपने कह दिया शी इज हैविंग सिवियर एनीमिया, आई एम नॉट really interested if she's having severe mild anemia. I am interested to know that what is the cause of anemia. इससे बेहतर स्टेटमेंट थी कि she is having anemia because of iron deficiency. This was the line which you were supposed to say. इसलिए ये स्टार्ट ही बिल्कुल गलत था अनीमिया के ट्रीटमेंट का। So I will counsel my patient that she is having deficiency of iron or she is having iron deficiency, she is having anemia because or low hemoglobin, अगर और भी लेमन के उसमें करना है, ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। और उसके बाद और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या, इसकी कोई खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ना तो ये आईजीआर करता है खुदा ना खासा। हाँ ये जरूर होता है कि इट कैन कॉज प्रीटर्म लेबर और ज्यादा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकती हैं। अगर आप मेंशन करना चाहते हो जरूर कर दो, अदरवाइज फीटस के अंदर और कोई बहुत बड़ा मसला वेरी वेरी रेयर। अदरवाइज अगर एनीमिया में मसला होता तो हमारे मुल्क में जो सारी गरीब औरतें हैं उनके तो बच्चे कभी ठीक होते ही ना, ठीक है। सो लकीली एनीमिया डजंट रियली कॉज एनी हार्म, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा मेंशन करना चाहते हो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जरूर कर दो। देन यू विल टॉक अबाउट, अगर बाकी ठीक है, बाकी शी इज हैविंग लिवर प्रॉब्लम, आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व किया, देन यू कैन डेफिनेटली टॉक एज वी इनिशियली, इट्स बेटर कि आप 2-3 लाइनों में एम ऑफ मैनेजमेंट कर दो ताकि प्लान ऑफ मैनेजमेंट को मजीद डिटेल में बात कर दो। बाकी जो भी आपका अपना वो है, एक क्या उसे कहते हैं, जो भी तरीका है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेहतर तरीका है कि इफ यू आर टॉकिंग फर्स्ट अबाउट एम ऑफ मैनेजमेंट, देन यू टॉक एग्जैक्टली कि व्हाट इज द डायग्नोसिस और व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम विद द पेशेंट और उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है पेशेंट की प्रेगनेंसी पे, एंड देन यू टॉक अबाउट द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, एंड इफ यू थिंक दैट शी इज आफ्टर 30-32 वीक्स एंड यू नीड टू गिव हर डेक्सा कवर, यू टॉक अबाउट दैट, देन you consider treating other things if she's having UTI, if she's having liver disease, if she's having blood pressure, you know, और कुछ चीजें हैं तो आप वो करोगे, and then you come to the plan. When you come to the plan, you say that I need to correct her anemia, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आप बोलो कि she's at 5 to 6, so let's make it 26. She's at 26 weeks of gestation. She is having like more than 12 more weeks. अगर हम इसको 38 या 39 वीक्स तक भी लेके जाएं तो शी इज हैविंग मोर देन 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। मेरे पास अभी इतना टाइम है, इनडायरेक्टली आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि अभी मैं कोई इसका सिजेरियन तो नहीं करने लगी ना, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं ये इसका हीमोग्लोबिन बिल्डअप करूं। तो शी इज एट 26 वीक्स, आई हैव मोर देन 12 more weeks left with this pregnancy and she is not having any significant symptoms because of anemia, right? तो एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो अब ऑप्शंस क्या रहेंगे? इफ शी इज नॉट हैविंग एनी, शी इज नॉट डीकम्पेंसेटेड बिकॉज ऑफ एनीमिया, यानी उसका सिम्टम्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो व्हाट इफ यू जस्ट डोंट इवन गिव हर ब्लड? देन यू टॉक इफ नॉट ब्लड देन व्हाट? तो फिर माइंड में आना चाहिए कि ओरल आयरन है या आईवी आयरन है, राइट? अब ये दोनों चीजें जस्टिफाइबल है। इफ यू से दैट पेशेंट नेवर ओरल आयरन बिफोर बिकॉज उसे कभी प्रिस्क्राइब नहीं हुई, या वो कभी किसी डॉक्टर के पास ही नहीं गई, या उसे वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उसने नहीं ली, you can even give up because oral iron and IV iron has got the same results. Only difference is कि patient compliant कितना, tolerance उसके अंदर कितनी है, वो उसके अंदर साइड इफेक्ट्स तो नहीं करता। ओरल आयरन और IV आयरन देने में यही एक फर्क आपने रखना है,
रिजल्ट तो सेम ही आएगा उनका, एक जितना रिजल्ट आएगा आप उसे आईवी दो या ओरल। आईवी हम इसलिए देते हैं कि हम या तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, पेशेंट पहुंच गए 35-36 वीक्स पे और अगर आपने उसे ब्लड नहीं लगाना फॉर एग्जांपल एंड यू थिंक अब मैंने ब्लड और मैंने इसका हफ्ते 2 हफ्ते बाद सिजेरियन कर देना, तो मैं इसे ओरल आयरन पे क्या एक्सपेरिमेंट करूंगी कि 10 दिन बाद आ जाएगी या हीमोग्लोबिन और कम ना हुई हो तो एटलीस्ट आईवी तो दूं कि कंप्लाइंट नहीं। बट इफ शी इज हैविंग मोर देन 12 वीक्स एंड शी इज गुड टू कम फॉर द फॉलो अप and she is going to be compliant, you can always compliance आप reassure करोगे या आप ओपीडी में what we all do, हम मंगवाते हैं पेशेंट को अगर वो आयरन उसने लिया तो हम कहते हैं अगले विजिट पे लेके आना और हम देखते हैं उसे कितनी मेडिसिन ली है, या फिर आप उसका 10 दिन बाद हीमोग्लोबिन रिपीट करा के चेक कर लेते हो कि अगर वो ओरल आयरन ले रही है तो 10 दिन के बाद उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आपने ओरल और आईवी आयरन देने के लिए ये दो चीजों का फर्क रखना है, एफिशिएंसी दोनों की एक जितनी है, हीमोग्लोबिन राइज एक जितना है, टाइम ड्यूरेशन भी दोनों एक जितना ही लेते हैं, एटलीस्ट 2 वीक्स 10 days to 2 weeks लगते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ने में। तो अगर उसके पास 12 हफ्ते से ज्यादा है एंड यू आर सेइंग दैट आई कैन इवन डिस्चार्ज हर ऑन बीडी ओरल आयरन but I will make sure that she is compliant and that I can do by checking that उसका पत्ता चेक कर लो या उसका compliance या and will ask her to come back after 10 days with the hemoglobin report, and if it is rising then it means that oral iron is going good for her and she'll continue taking it. 2 हफ्ते बाद उसका अगर 6 से 7 8 हो रहा है तो फिर after 1 month she will be near at 9 or 10 हो जाएगा आराम से। तो इतना महंगा है फेरिंजेक्ट, इतना महंगा वीनोफर आना जाना लगाना 15,000 तो ऐसी मरीज का लग जाता है, ठीक है, और रिजल्ट वही है जो ओरल आयरन का, ठीक है ना। और सेकेंडली ऑब्वियसली लेस रिएक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। और ब्लड पे तो माफी नहीं अगर आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, ब्लड नहीं ऐसे लगाना। हाँ देखो इफ यू वांट टू जस्टिफाई, अगर आप कहते हैं नॉट फॉर ब्लड फॉर आईवी आयरन एंड ओरल आयरन, आप कहो कि मैं इसको चलो इसलिए आईवी लगा रही हूँ कि आई डोंट रियली वांट कि 10 दिन बाद 5 हीमोग्लोबिन लेके आ जाए मेरे सामने, राइट। द इवन 5 इज लाइक आप उसको चलो 5 पे लगा देना आईवी आयरन, 7 हो जाएगी 2 हफ्ते बाद, उससे उसके बाद उसको बीडी आयरन दे देना, महीने के बाद 9 हो जाएगी, ठीक है ना। सो यू हैव टू डिसाइड, आपने जब मैनेज करना है नीमिया को ऑप्स के अंदर तो आपने इसी तरीके से बात करनी है कि आपने कहना है कि शी इज एट 25 or 26 weeks of gestation, I have more than weeks to treat her anemia, she is not symptomatic, she's having iron deficiency anemia, she never had any oral iron because she was never prescribed, because she never went to a doctor, so I can definitely give her BD oral iron and will get her hemoglobin checked after 10 days to reassure the compliance or to reassure the efficacy of oral iron. And if the hemoglobin is not rising after 10 days, then I can give her IV iron, right? And if she remains asymptomatic. और अगर आप कहते हो अगर आपने आईवी आयरन देना तो ठीक है, आप कहते हो बिकॉज शी इज हैविंग 6 हीमोग्लोबिन, आई डोंट रियली वांट कि वो कल को सिम्टोमेटिक होके आ जाए, मुझे उसको ब्लड लगाना पड़े, आई गिव हर आईवी आयरन एंड देन आई विल गिव हर बीडी आयरन, ठीक है ना। और इसी तरह एकदम से फिर बात ये होती है व्हेन यू आर आंसरिंग वेल देन दे कीप ऑन चेंजिंग सिनेरियोस, दे से दैट इफ द सेम पेशेंट कम्स टू योर 32 वीक्स, व्हाट इफ द सेम पेशेंट कम्स टू योर 36 वीक्स। मैम पर ये सिम्टोमेटिक थी ना, इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी काफी, वो काम बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, वो हिल ही नहीं पा रही थी। इफ इट इज देयर, ठीक है, इफ शी इज रियली हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे कि मैंने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का क्राइटेरिया आपको बता दिया, वो ये है कि पेशेंट वो नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्या उसे कहते हैं लाइक किचन का काम और अपना हाउस होल्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं कर सक रहा, तो ओके अगर आप ब्लड लगाते हो, अच्छा फिर ऐसे नहीं बोल देना कि ब्लड ठीक है आपने ट्रांसफ्यूजन किया तो स्टोरी सारी ठीक बता दी बट फिर चलो आपने हीमोग्लोबिन रिपीट कराई, लेकिन आर यू रियली गोइंग टू जस्ट रिपीट हर हीमोग्लोबिन? हम उसे ब्लड सिर्फ हीमोग्लोबिन के लिए तो नहीं लगा रहे, अगले दिन हमने उसकी हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल कराई है रिपीट 7 तो आ गई है, बट इज इट द ओनली थिंग दैट यू आर चेकिंग आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन? नो, यू आर चेकिंग हर सिम्टम्स एज वेल। हमने तो उसके सिम्टम इंप्रूवमेंट के लिए ब्लड लगाया। आपने जब ट्रीटमेंट पेशेंट की है ना, तो आपने वहीं पे बोलना है कि व्हाई आर यू गिविंग हर ब्लड। आप कहो जैसे आई मिस्ड इट, जैसे आप कहो कि बिकॉज शी इज हैविंग दिस मच, से आप फिर स्टोरी यही करोगे कि शी इज एट I have more than 12 weeks to treat her anemia, but she is having so much symptoms that she cannot even do her household work. So, and is having this shortness of breath. She is in a decompensated state, right? So, I will give her blood transfusion.
बट दैट डज नॉट रियली मीन कि बस ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग गई तो चलो ठीक है, रिएक्शन नहीं हुआ और अगले दिन हीमोग्लोबिन से, नो, आई एम गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर सिम्टम्स, ठीक है ना। तो अगले दिन जाके सिम्टम्स, और ये जो क्रॉनिक एनीमिया होता है जिसमें सिम्टम्स हो, एक ट्रांसफ्यूजन से ऐसे मिरेकल होता है, मरीज उठ के बैठ जाता है। बेशक उसकी हीमोग्लोबिन, बेशक 3 हीमोग्लोबिन वाले को आप एक ब्लड लगाओ, अगले दिन वो ठीक हुआ होता है। अगर वो ठीक नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल 5-6 हीमोग्लोबिन पे आपने ब्लड लगाया है, अगले दिन बात तो करो ना कि आपने कहना है कि सिम्टम्स हैव इम्प्रूव। इफ योर वाइवा इज गोइंग गुड, एग्जामिनर उस बात को मान लेंगे कि ठीक है, आपका मेरी ब्लड से सिम्टम्स ठीक हो गए, आगे क्या करेंगे। बट अगर सिम्टम्स ठीक नहीं हुए, देन व्हाट विल यू डू? यू कैन गिव हर वन मोर ट्रांसफ्यूजन, राइट। बट अगर एक ट्रांसफ्यूजन और के बाद भी उसके सिम्टम्स ठीक नहीं हुए, तो फिर वो अनीमिया के अलावा कोई सिम्टम्स है, फिर आप प्रॉपरली कार्डियोलॉजिस्ट के हवाले करो, कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाओ, बिकॉज अनीमिया सिम्टम्स हैव टू गेट इम्प्रूव विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चाहे उसकी 3 हीमोग्लोबिन है, 3 से 4 हुई है, वो उठ के बैठ जाती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपको केयरफुल होना है कि देयर इज सम अदर कॉज गोइंग ऑन इनसाइड हर बॉडी एज वेल, व्हिच इज नॉट रिलेटेड विद लो एचपी, इट मे बी रिलेटेड टू हार्ट और एनी अदर थिंग। तो ये सिम्टम, तो ब्लड की तो वो कहानी है, हमने 26 वीक पे उसकी हीमोग्लोबिन 2 दिनों में हमें क्या हासिल हो जाएगा 12 करने करके या 10 करके, हमारा तो वही नहीं, हमारे पास तो 12 हफ्ते पड़े हुए हैं। वो हम आराम आराम से हम उसको लीस्ट रिस्क पे रख के उसका खर्चा कम से कम रख के करना है। उसको 13-13 हजार के इंजेक्शन, फिर अस्पताल आए, आईवी लाइंस लगवाए, अल्लाह ना करे उसे रिएक्शन हो जाए, हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या फायदा। वही उसको बीडी आयरन दे दो। तो और ब्लड के बाद आप उसे घर भेज सकते हो, और अगर जॉन्डिस वाला सारा मसला रूल आउट हो गया ऑफ कोर्स, तो आप उसे घर भेज सकते हो और वो बीडी आयरन ले और 10 दिन बाद चाहे हीमोग्लोबिन करा ले, और अब वो स्टेबल है तो फिर महीने बाद कराओ उसका बीडी आयरन देके, ठीक है। और जब जब एक आपका टारगेट रेंज है, यू कैन टॉक लाइक दिस। आपने आपका इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि आप उस मरीज के साथ कर क्या रहे हो, आप उसे ब्लड दे रहे हो, आप दे क्यों रहे हो, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर। ये भी नहीं मैटर करता कि आप क्या डोज दे रहे हो, एक्चुअली एवरी कैंडिडेट नोज 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, जैसे डॉक्टर शाहरुख ने एग्जैक्टली बता दिया आईवी इन्फ्यूजन की क्या डोज बनती है, 5 इन्फ्यूजन 4 इन्फ्यूजन बनती है, विदाउट, शी डजंट नीड टू कैलकुलेट, शी शुड नॉट नीड। वहां पे बहुत बेवकूफी लगती है, आप बैठ के वो जो कैलकुलेशंस करो, nobody really likes that. You have to know कि 80 हीमोग्लोबिन अच्छा इतनी ट्रांसफ्यूजन हो जाएंगी, अंदाजे से बोलो और दैट्स इट। बट द थिंग इज ये भी नहीं मैटर करता, डोज भी मैटर नहीं करती, करना क्या, करना क्यों है मैटर करता है। अगर आप वो नहीं ठीक लेके जा रहे, यू शुड नॉट पास, फ्रैंकली। व्हाई? ब्लड आपने, जैसे मैंने कहा, और वो आप पता है कि हमारे माइंड को एक प्रोसेस करने का टाइम मिल जाता है उसके अंदर। When you're saying that my patient is at 26 weeks of gestation, yeah, my patient is at, for example, 25, 26 weeks of gestation, she has got more than 12 more weeks, and my target is to bring her hemoglobin to at least 10 or 11, जो आपका 10 भी काफी है, to bring her hemoglobin to 10, which means that I need to rise hemoglobin by 4. अब when I'm saying all this, मेरा mind सोच रहा है कि मैंने इसके साथ करना क्या, and I am getting my answer actually. When I'm saying my patient is at itne weeks, she's having more than 12 more weeks, she's having iron deficiency anemia, and she's, for example, not symptomatic, ये सारा मेरा माइंड सोचे, she never had oral iron, तो why not, फिर माइंड होता है कि I can discharge her on BDI. Frankly, I don't know, I'm sure आप लोग तो ज्यादा हो इसमें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको एक ना एक पेशेंट मिल जाती है 3 हीमोग्लोबिन वाली, इतनी अच्छी भली बैठी होती है वो, क्रॉनिक एनीमिया के साथ, 4 हीमोग्लोबिन के साथ, क्या उसके अंदर 4-5 ब्लड लगा। अब ये जिस तरह डॉक्टर शाहरुख ने कहा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिम्टोमेटिक पेशेंट होती और इसको कोई ब्लड लगा देता कि सिवियर ये है एनीमिया और 6 हीमोग्लोबिन है, मैंने इसको ब्लड लगाना है, और फिर मैं 7 के बाद, तो अगला सवाल एग्जामिनर करता है, व्हाट इफ शी कम्स टू यू विद 3 or 4 hemoglobin, are you going to give her 3 transfusions? Transfusion is not given to increase hemoglobin in this case, स्पेशली अगर आपके पास पूरी प्रेगनेंसी अभी पड़ी है, या फिर वो कहते हैं 12 वीक्स पे आ गई है, तो क्या आप इसको ट्रांसफ्यूजन पे ट्रांसफ्यूजन लगाई जाओगे। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो एग्जाम में जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए एक्चुअली। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते थे, वैसे WHO की रिकमेंडेशन भी है, 3 से ज्यादा जरूरियात नहीं होती ऑप्स के अंदर ब्लड, उसके अलावा तो
गुनाह ही समझो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक तो पीपीएच एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एक पीपीएच सेकेंडरी पीपीएच जो होता है, जो कि डिलीवरी के बाद विद इन 40 डेज बहुत हेवी ब्लीडिंग हो जाए, और एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी एंटीनेटली अगर वो डिकम्पनसेशन में, अगर वो उसमें पेशेंट सिम्टोमेटिक, उसके अलावा चौथी कोई कॉज ही नहीं। ठीक है, चाहे वो 3 हीमोग्लोबिन है 4। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि कहीं ये 2 होके ना आ जाए या वो ना होके आ जाए एंड यू कैन जस्टिफाई, फिर आप एक लगा के फिर उसको आगे फर्दर कर रहे हो। बट इवन आप बीडी आयरन पे लेके चलो पेशेंट को, उसकी कंप्लायंस चेक करते जाओ, 10 डेज बाद 2 वीक्स बाद हीमोग्लोबिन कराओ, इफ इट इज राइजिंग वेल तो व्हाट्स द हरी देन। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप लोग अब ये खुद अपनी एक्सरसाइजेस बनाओ, अपने खुद करो कि पेशेंट इज कमिंग फॉर एग्जांपल एट 7 हीमोग्लोबिन, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हम कहते हैं ना, पता नहीं कि 35 वीक्स के बाद हरे को ब्लड लगा दो खुदा ना खासा, या 36 वीक्स के बाद पता नहीं क्या कर दो, या आईवी आयरन ही लगाना है 35 के बाद। नो, नॉट एट ऑल। आप अपनी खुद रूल्स बनाओ। आपको if she is coming at 32 weeks, then for example if she's primary, I have 8 more weeks to go, she is having iron deficiency anemia, she has taken oral iron before regularly but she is still at 8 or she is still at 7 HB, तो फिर हम ओरल नहीं देंगे उसको, देन आई विल गिव हर आईवी आयरन, क्योंकि वो ओरल तो लेके आई है, उसके बाद मेरे पास इतने खराब हीमोग्लोबिन लेके आई, तो फिर दोबारा ओरल देने की क्या तुक है। तो जब आप ये स्टेटमेंट बोलते हो ना कि शी इज एट 32 वीक्स, शी इज हैविंग 8 more weeks to go and she is having iron deficiency anemia but she has taken oral iron, so from now, so but still her hemoglobin is not sufficient, which means अब दोबारा oral iron देने की जरूरत नहीं है, I can give her IV iron and can follow her with hemoglobin, है ना। और जो भी देना है आपने 4-5 डोजेस वाला देना है या फेरेंजेक्ट देना है वो आप डिसाइड कर लो, और वो दो, और उसके बाद 2 वीक्स बाद hemoglobin रिपीट कराओ and then follow her, और do talk about her symptoms as well that she is asymptomatic. But as ये जो डॉक्टर शाहरुख का पेशेंट था, she was very symptomatic, so you can say that I will give her transfusion, though she is at 26 weeks, she is having more than 12 more weeks to go, but her hemoglobin is 6 and she is having severe symptoms. That's why I would like to give her 1 pack cell transfusion with monitoring and जो भी सारा उन्होंने बोला, to make sure कि वो ठीक क्रॉस मैच हुआ है, and will follow her for her symptoms and hemoglobin the next day. अगर ये नहीं बोल रहे तो पास होना बनता ही नहीं, इट मीन्स यू डोंट नो कि आपने ब्लड क्यों दिया। ठीक है ना। और फिर उसके बाद एज अ हीमोग्लोबिन शुड बी एटलीस्ट 7 नाउ एंड शी इज एसिम्प्टोमेटिक नाउ, सो आई कैन, फिर आप कर लो कि शी इज कंप्लायंट बीडी आयरन, इफ नॉट कंप्लायंट फॉलो अप के लिए तो लगा के भेजो, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा फिर आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट उस वक्त डिसाइड कर सकते। बट अपनी एनीमिया में ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक रखनी है एंड और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट। वो एकदम स्पेशली अगर किसी को एनीमिया, आपने सुना होगा किसी को एनीमिया आ गया, अभी तो इसकी इतनी सारी पैथोफिजियोलॉजी है कि आयरन आप जब लेते हो तो आयरन की एब्जॉर्प्शन कैसी होती है, और जो रेड मीट आयरन होता है और जो दूसरा आयरन होता है, हाउ आर दे डिफरेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी एक पैथोफिजियोलॉजी है। तो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू विद दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और फिर साथ में हम डीडी पे बात कर लेंगे एज अ होल, पूरे गायनी ऑप्स के और गायनी के एनीमिया पे भी बात कर लेंगे। अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो बता दें। मैम हाँ वाला डॉक्टर फॉर मुझे ओवेंट्स मांगना होता है। हाँ, वो मैंने सच सोचा था आपसे बात करूंगी एंड पे लेक्चर के। इट्स बेटर टू आस्क फॉर ओवेंट्स पेशेंट्स, आर पेशेंट्स नॉर्मली वो बेयरफुट तो होते हैं, चलते हैं, उनकी हैबिट्स इस तरह, और सेकेंडली बावल हैबिट्स, देयर इज नो हार्म इन आस्किंग ओवेंट्स, बट उसका भी एक तरीका फिर आना चाहिए, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर शाहरुख डिड मेंशन कि उन्होंने पहले स्टूल्स और ओवरसिस्ट को ट्रीट किया, उसके बाद डीवर्म किया पेशेंट को, फिर तो उसके अंदर फिर थोड़ा सा आपको ये राउंड वर्म, हुक वर्म और टेप वर्म का पता होना चाहिए। देन यू शुड नो एग्जैक्टली कि सैंपल जो है स्टूल फॉर ओवन सिस्ट किस तरह लिया जाता है। 3 days पहले से पेशेंट को शुड नॉट बी ऑन एंटी डायरियल, और साथ में उसके ऊपर कॉन्स्टिपेशन के लिए जो दी जाती हैं स्पोल वगैरह वो ना हो, देन एंटीबायोटिक्स पे ना हो, रेड मीट वगैरह ना लिया हो ज्यादा पेशेंट ने 3 days पहले, और फिर वो स्टूल दे, तो उससे फिर सैंपल 3 consecutive days का भी स्टूल होता है, फिर उससे वो दैट्स अ जेन्युइन रिपोर्ट है। एंड some even ask for the blood film for malarial parasite. There is no harm in asking for all this.
मैडम अगर जिस पेशेंट टाइम हीमोग्लोबिन 3 के साथ है, हमारे पास एसिम्टोमेटिक पेशेंट है और हीमोग्लोबिन पे 3 है, 28 वीक्स या 30 वीक्स कैस्ट्रेशन पर है, तो क्या हम उसे 28 ओरल आयरन पे छोड़ देंगे? नहीं 28 30 ज्यादा है। एसिम्टोमेटिक है तो देखो एसिम्टोमेटिक है 28 या 30 वीक्स आयरन डेफिशिएंसी नहीं है राइट। आप उस 3 इज लाइक वेरी लो फॉर 28 और 30 वीक्स। 12 वीक्स पे और बात है, इवन 20 वीक्स पे और बात है। 3 वाला तो प्रीटर्म लेबर में भी जा सकता है। इसके अंदर आप कहोगे कि आई हैव 10 मोर वीक्स टू गो। 10 मोर वीक्स में हीमोग्लोबिन 1 ग्राम भी अगर बढ़ता जाएगा हर महीने तो ही जाके कहीं आखिरी महीने में जाके, तो इसमें आप इनिशियली आईवी आयरन दे सकते हो बिकॉज यू नेवर नो कि 2 हफ्ते बाद जब आप हीमोग्लोबिन रिपीट कराओ एंड शी कम्स एट 32 वीक्स विद 2 हीमोग्लोबिन तो यू स्टैंड नो वेयर एक्चुअली राइट। तो यू कैन गिव हर आईवी आयरन, यू कैन ट्रांसफ्यूज इवन। देखो जो 3 हीमोग्लोबिन वाला है ना उसमें भी आप एक ब्लड भी लगा दो ना, ये कह सकते हो कि आई डोंट रियली वांट कि 2 हफ्ते बाद आए मेरे पास तो ये हुआ। तो आप एक एक या 2 यूनिट लगा के एटलीस्ट 5 हीमोग्लोबिन करो, बट इट्स नॉट लाइक आप उसे 6 यूनिट लगा दो कि हम कम से कम उसका 8 तो करें ना। तो वो ओके मैडम, एंड अगर ये पेशेंट 3 हीमोग्लोबिन पे, तो हमारा ये रीजनिंग हो सकती है कि शी कैन गो इनटू एनीमिक फेलियर एट एनी टाइम, सो आई वांट टू प्रिवेंट दिस एंड सो आई वुड लाइक टू ट्रांसफ्यूज हर ब्लड यस एंड इफ यस हर हीमोग्लोबिन would have been 5 at that time, तो मैडम 5 पे भी यही सेम रीजनिंग होगी ना? मैडम एटलीस्ट 5 6 तो हो ना पेशेंट का। इफ यू थिंक सो इवन 5 पे अगर आप आईवी आयरन लगा के उसे भेज रहे हो 2 वीक्स बाद उसका हीमोग्लोबिन रिपीट करो फॉर यू इट शुड राइज बिकॉज इट्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आपने कसर तो कोई छोड़ी नहीं। और उसके बाद बीडी आयरन पे उसे रखो तो वो ठीक है। बट इफ यू थिंक दैट नहीं ठीक है मैं आई डोंट रियली वांट, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, 4 पे होना नहीं चाहिए। 5 इज नॉट, 5 पे आप कर सकते हो 28 या 30 वीक्स पे उसको आईवी आयरन दे के 2 वीक्स बाद कराओगे उसका 6 तो एटलीस्ट हुआ होगा। उसके ऊपर जब बीडी आयरन दोगे तो महीने के बाद दो। बट इफ यू डोंट रियली वांट टू टेक एनी रिस्क तो आप एक ब्लड लगा के उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो, बट देन यू हैव टू जस्टिफाई विच इज वेरी। बात ये है कि आपने ये बताना है अपने वाइवे में कि आप क्यों कर रहे हो। इफ यू आर सेइंग दैट नो 5 इज वेरी लो फॉर मी, आई थिंक एटलीस्ट 6 के ऊपर मैं आईवी आयरन लगाऊं और फिर भेजूं और फिर उन पे रखूं विच इज मे बी, वो भी ठीक है। बट आप वजह तो बताओ ना, ठीक है ना which is मैडम ठीक है। Madam, it doesn't takes only 2 weeks to raise the hemoglobin. It takes 3 weeks to raise the hemoglobin. In 7 days जो है मैडम रेटिक काउंट इम्प्रूव होता है और 2 weeks में जो है मैडम इंडाइसिस इम्प्रूव हो रहे होते हैं. It takes 3 बट weeks you're to right, improve the you're right, hemoglobin. you're right. बट 2 वीक्स या 10 डेज में रिपोर्ट से पता चल जाता है। रेटिकुलोसाइट काउंट हमने आज तक आई डोंट नो हमने कभी नहीं कराया। आई डोंट रियली थिंक सो कि आप लोग भी कराते हो रेटिकुलोसाइट काउंट मॉनिटर करने के लिए। हम हीमोग्लोबिन ही करा लेते हैं 10 दिन के बाद। हाँ ठीक है, यस और मैम, इट इज ऑलवेज अगर वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है तो विच मीन्स दैट असर ठीक हो रहा है उसका। तो मैडम इसीलिए मैं हमेशा ये करती विच हूँ इज कि गुड। 5 मीन hemoglobin. आप बिल्कुल ठीक, आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली कॉन्सेप्ट बात है ना कि मैं आप लोगों का माइंड उससे हटाना चाह रही हूँ कि 35 वीक्स डज नॉट रियली मीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑलवेज, या 35 वीक्स डज नॉट रियली मीन आईवी ट्रांसफ्यूजन ऑलवेज, या 6 हीमोग्लोबिन ऑलवेज मींस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपने उसको जस्टिफाई करना। डॉक्टर रुबा Okay, madam, one मैंने last question from my side, please. जी जी मैडम, मैंने एक 32 वीक्स की पेशेंट का हिस्ट्री ली थी और एक एग्जामिनर को प्रेजेंट की थी, तो शी वाज लाइक व्हाई यू हैवंट एग्जामिन्ड फॉर विस्ट्रोमेगाली लिवर एंड स्प्लीन, तो आई वाज लाइक मैडम दैट इज 32 वीक्स प्रेग्नेंट 32 वीक्स पेशेंट, पे सो आप हाउ कैन देख आई सकते हो। पैल्पेट? नहीं 32 वीक्स पे देखो जो लिवर है ना वो जब जब इनलार्ज हुआ होता है तो रिब से थोड़ा सा नीचे आया होता है। 32 वीक्स पे तो अभी अम्बलाइकस से मतलब 4 फिंगर से थोड़ा सा ऊपर ही होती है ना फंडस, तो देयर इज अ स्पेस बिलो रिब्स। वो आप विस्ट्रोमेगाली देख सकते हो टर्म के बेबी अच्छा, के अभी लिए। मैडम जैसे आप कह रही थी कि, और डॉक्टर शहनाज का भी मैंने एक लेक्चर सुना था यूट्यूब पे, तो शी वाज लाइक आफ्टर 26 वीक्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पैल्पेट द विसरास. यस देखो बात ये है कि पेल्पेट तो नहीं कर सकते, लेकिन इफ देयर इज मार्क विस्ट्रोमेगाली और लिवर एनलार्जमेंट है जैसे कि इस पेशेंट में जॉन्डिस था तो एटलीस्ट ट्राई तो करो ना। इट्स नॉट लाइक आप कहो कि इट्स मोर देन 26 वीक्स एंड यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू पैल्पेट, यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू फाइंड आउट लिवर का क्या स्टेटस है। Okay, and then, ma'am, for spleen, that examiner was like, spleen used to come over the gravid uterus. पूरे gravid uterus के ऊपर आती है अगर splenomegaly हुई भी होती है, हो तो you सकता have है। to palpate for splenomegaly also. I was amazed and I didn't ये नीड टू heard गूगल, आई anyone थिंक ये else. हमें गूगल करना पड़ेगा।
हाँ मैम, अगर मुझे भी उन्होंने क्वेश्चन कहा है तो पूछना है। कोई रीजन इसके पीछे होगी, तो वी जस्ट नीड टू रीचेक कि उनके किस पॉइंट उससे कहा है, लेकिन बट मैडम इन प्रॉब्लम द वो हिस्ट्री, मैडम इन द किसी बात हिस्ट्री, से ऑफेंड हुए होते हैं। पता है इस तरह की जब वो बातें करें ना, जैसे कि अभी आज केस बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया है शाहरुख ने, बट एज आई डिडंट लाइक हर एग्जामिनेशन, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बोला उन्होंने। तो आप बहुत 1000 अजीबोगरीब, और फिर ये है कि जो कैंडिडेट है उसका वो खत्म होना शुरू हो जाता है, वो सेंसेस लूज करना शुरू कर देते हैं ना कि अच्छा मैंने विस्ट्रोपिन कह ली नहीं, वो फिर अगले अगले सवाल जो है ना वो मिस होना शुरू, वो एक मेंटल स्टेट से आप ऑफ ट्रैक होना शुरू हो जाते हैं, तो and ma'am वो in करते these हैं। cases of ठीक है, anemia सवाल should है we नहीं rule out, खास। हाँ madam, should we rule out the anemias of chronic diseases, like should we ask for chronic renal disease and chronic मैंने कह liver दिया था disease शी in the वाज history of anemia? क्रॉनिक डिजीज एज अ होल, यस। वो जब क्रॉनिक डिजीज की बात की तो वो पूरी कवर हो गई। इफ यू वांट टू मेंशन सेपरेटली आप कर सकते हो एनीमिया के केस में। एक्सक्यूज मी मैम, डॉक्टर वो मुझे मुझे एक ये सिनेरियो पूछना डिस्कस था करना था। कि आयरन मैडम डेफिशिएंसी मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए तो चलो फिर एक एक करके। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फर्स्ट पे क्या? ट्राइमेस्टर में आयरन एनीमिया का केस सारा ऐसा ही चलता है। दे आर नॉट कंसर्न कि ये पेशेंट कहाँ है। ठीक है, इस पेशेंट के जैसे आज हमने शाहरुख का पेशेंट किया कि 20, वो वहीं पे सवाल बदल लेते हैं। व्हाट इफ शी कम्स problem and same hemoglobin report at 12 weeks? What if she comes to you at 36 weeks? What your concept has to be very clear. अच्छा, मतलब उसमें मेरा आपने क्वेश्चन था कि स्टार्ट ही मतलब ऐसे करना है। जब आप स्टार्ट ही ऐसे करोगे ना, सॉरी एक बस मैं कंप्लीट करूँ, जब आप स्टार्ट ही ऐसे करोगे ना कि आई हैव फॉर एग्जांपल अगर 35 वीक्स पे आई हैव 4 या 5 वीक्स मोर टू गो एंड हर hemoglobin is 6 and she's having iron deficiency anemia, she has not taken oral iron, but as she's at 35 weeks and just have 4 more weeks to go, तो अब मैं रिस्क तो नहीं ले सकती ना। बेशक इस टाइम पे अगर आप एक ब्लड लगा के आईवी आयरन लगा के जो ओरल आयरन का करो, कोई हर्ज नहीं है। 6 हीमोग्लोबिन इज वेरी वेरी लो, यू डोंट, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आपका मरीज एनीमिक है और लेबर पेन में आ गए टर्म पे। ठीक है ना, उसमें तो आपने यू हैव टू बी वेरी सेफ डॉक्टर एज वेल। तो वो आपने, लेकिन अगेन इफ यू से दैट शी इज एट 8 hemoglobin and she's at 35 weeks, I have 4 or 5 more weeks to go in a, for example primary gravida, then you can say that I can give her IV iron and then BD oral iron और उसका टेस्ट हो ही जाएगा, फिर क्यों ब्लड लगाना एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यू जस्ट नीड टू जस्टिफाई, ठीक है, अपनी पूरी स्टेटमेंट। मैम अगर यही पेशेंट टर्म पे पहुंच जाती है हमारे पास, 38 पे पहुंच जाती है और यही इसके हालात होते हैं, फिर इसकी कितनी एचपी रेस करके सेक्शन करेंगे एटलीस्ट? hemoglobin 10 तो रखेंगे ना। देखो अब ये प्रीवियस 3 है with even with 2 more blood in hand, ये तो फिर बहुत है बुरा केस हो गया ना। अगर टर्म पे 6 हीमोग्लोबिन के साथ प्रीवियस 3 आ गया आपके पास। मैम ऐसे ही करते हैं एग्जामिनर्स, वो एंड पे ऐसे ही पूछते हैं इस तरह अरे की पेशेंट वो लेबर में आ थोड़ा जाएगी सा तो क्या वायरस करें? ना जा रहा हो तो फिर इस तरह के ड्रास्टिक सिचुएशंस बनाते हैं। ठीक ठीक है, आयजा कुछ पूछना चाह रही थी। मैडम मैंने एक सिनेरियो डिस्कस करना था। मैंने पेशेंट देखा था एक वार्ड में, शी वाज मल्टी एट 35 प्लस वीक्स विद 6 हीमोग्लोबिन। तो इसका फिर मैं क्योंकि मल्टी है, शी इज एट रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर, बिल्कुल तो फिर आप मैं ये इसका नहीं मैडम कर अगर सकते। एसिम्प्टोमेटिक है एंड नाउ शी इज एट 6 हीमोग्लोबिन, देखो तो आप कैन इसे आई गिव हर इस तरह ब्लड? नहीं बोलो, आप इसी तरह बोलो कि शी इज मल्टी ग्रेविड कंसिडरिंग कोई उसके अंदर हाइपरटेंशन डायबिटीज नहीं है कि आपने अर्ली डिलीवरी करनी है, बट शी इज मल्टी ग्रेविड। लेके तो 40 वीक्स तक ही जाना। फॉर मी आई एम हैविंग 5 more weeks but her hemoglobin is 6 and she is multigravid, she can even go in labor anytime and she is at more risk of having PPH। ठीक है ना, तो फिर अपनी सारी बोल दो 6 के ऊपर आप कहो कि मैं 2 ब्लड चाहे लगा दूंगी, फिर आईवी आयरन और बीडी आयरन पे रखूंगी कि 8 के ऊपर बेस लाइन 8 रख के उसके ऊपर मैं उसको आईवी आयरन और फिर उसको बीडी पे रखा है। ये कम से कम 10 रहे, बट 2 ब्लड शुड ऑलवेज बी इन हैंड या क्रॉस मैच हो डोनर, ताकि जब वो लेबर में जाए तो फिर आप उसको वो करो। लेकिन ये है कि आप ये सारी बातें आप बोलोगे कि शी इज मल्टी ऑल्दो शी इज नॉट हैविंग एनी रिस्क कि मैं उसका कोई प्री टर्म प्लान करूं। So for me, 5 more weeks are there, but she is multigravida, more risk of PPH is there. Iron deficiency anemia, hemoglobin is 6. I want at least baseline 8 हो, but my target is to keep at 10 at the time of delivery. ये सारी कैलकुलेशन बोल के ट्रीटमेंट होती है। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू चलो मैम, थैंक इंशाल्लाह फिर हम मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्लास में हम थैलेसीमिया और इस तरह की कुछ और चीजें कवर यू कर और लेंगे। सिकल सेल और थैलेसीमिया। हाँ, ये जो थोड़े से थ्योरेटिकल टॉपिक्स है ज्यादा। और हाँ मैम क्वेश्चन था Excuse me, कि Dr. Kumar? हाँ मैम अगर स्टूल डीआर फर्स्ट डे पे ही पॉजिटिव आ जाए तो हम नेक्स्ट फिर 2 days कराएंगे या नहीं? टूल का क्योंकि
जी जी मैम, 3 कंसेक्यूटिव डे हमें करवाना होता है अगर फर्स्ट डे पे ही हमें ओवा हाँ कंसेक्यूटिव 3 सैंपल्स लेने होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। शायद मैं लास्ट टाइम भी कंसेक्यूटिव बोलना भूल गई थी। पता नहीं, वैसे ये किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से पूछ लेंगे। मेरा तो ख्याल है जब मैम पॉजिटिव अगर आ फर्स्ट गया डे तो पे ट्रीट तो करना पॉजिटिव ही है। आ हाँ मैम अगर फर्स्ट डे पे पॉजिटिव आ गया है तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग 2 डेज हैं हम वो करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? ये किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से पूछ लो। मेरा तो ख्याल है एक नहीं दफा नहीं पॉजिटिव आ करवाते गया तो क्यों डॉक्टर कराई रूबा, नहीं जाती है। करवाते, नॉट इजी नहीं करवाना टेस्ट होता। कराना आसान तो नहीं है ना, फर्स्ट डे ट्रीट पे पॉजिटिव आता और है तो सैंपल फिर क्या अगले करेंगे। इस पे नहीं करवाना होता। कॉमन सेंस से नहीं कह रही है। ठीक है चलो बस ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वो करते हैं, और साथ में जो बाकी का हाफ होगा उसमें हम डीटी डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा गायनी की एनीमिया को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू मैम। हेलो हाँ जी ला चलो इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। ठीक है ओके मैडम बाय। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। मैं वही करने लगी हूँ, मैं इसलिए बिफोर नहीं हुई। रूबा, स्टूल फॉर कल ब्लड करवाना है। हाँ करा लो ठीक है, उसी थैंक यू। ठीक।